Hello and welcome to Sayastra. I hope that all of you are doing great and you are fantastically preparing for your upcoming exam JEE 2025, including both mains and advance. Basically, I think so that all of you, or maybe most of you, have already watched the series of one shot that we have posted on our channel. If you have not watched it, I will highly recommend it to you to go and watch it first before actually jumping to the 50 most important question series, and the link of which you will find in the description also. Now, in this particular series, what we are going to do, we are going to introduce to you 50 most important question by the means of 50 most important questions that will eventually let you score good marks in your JEE mains and eventually in your advance. In this question series, we have brought various questions from various competitive exams that actually matches the difficulty level of JEE mains and advance. Along with that, we have prepared special questions that actually will give you the experience of JEE mains and JEE advance altogether. My name is Parth Kumar Singh and I welcome you all people to this 50 important question series for IIT JEE 2025 for chemistry. Now, sorry. Yeah, so starting from the question 1. So basically, the way we have completed our one shot, that is first organic, then physical and then inorganic. In similar manner, I have tried to brought up some questions. Maybe थोड़ा बहुत shuffling होगी, but जो general order रहेगा वो यही रहेगा कि पहले हम organic के major concepts पढ़ेंगे और उसके बाद फिर physical फिर inorganic. ठीक है? तो पहला जो question है, बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें इस तरह से क्या दिया है, इस कंपाउंड का क्या नाम है, जल्दी से कमेंट में बताना. इसका नाम है थैलिक एनाइड्राइट, राइट? थैलिक एसिड, राइट? So this is thalic acid. If you treat it with ammonia and heat it, then what is basically formed we know. If we have this thalic acid and if we heat it with ammonia, we eventually get थैलियमाइड. पढ़ा है ना एमीन्स में, याद है? और उसके बाद जब इसकी बेस से रिएक्शन कराते हैं तो बेस इस एसिडिक प्रोटोन को ले जाता है. व्हाई दिस इज एसिडिक? बिकॉज इसका जो कॉन्जुगेट एनायन है वो रेजोनेंस से हाईली स्टेबलाइज्ड होगा. ठीक है, तो आपको मिलेगा N-. फिर ये एक पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और हमें पता है कि हमारे पास जो ETCl है उसके सिग्मा स्टार में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा. सो व्हाट यू विल गेट इज बेसिकली an ethyl substituted thaliamide, right? Now, the last step is not clear to you. Actually, they don't have shown you the reagent, but they have shown you the result. That result is you will get back this thalic acid, and there's only one way you will get it back, just by doing hydrolysis, right? Hydrolysis. So now hydrolysis have two methods. Either you do hydrolysis in acidic medium or you do hydrolysis in basic medium. Right? Eventually you will get acid here and another compound, that is your primary amine ETNH2, and this is basically derived from the chapter amines, right? And comment में बताओ इस रिएक्शन का नाम भी था कुछ, right? तो वो नाम क्या है? तो अब यहाँ पर उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कंपाउंड पी इज थैलियमाइड. ये देखो कंपाउंड पी ये है, ये थैलियमाइड था, है ना? उसके बाद ये कंपाउंड आर है, कंपाउंड आर इज एन इथाइल थैलियमाइड. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. कंपाउंड पी अपॉन हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय द रिएक्शन विद सोडा लाइम फॉर्म्स बेंजीन. ओके, ये जो कंपाउंड पी है, पी कौन सा? ये वाला पी या दिस वन. तो अगर इसकी रिएक्शन हम बेसिकली हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा बताओ? इसका हाइड्रोलिसिस करने पे तो ये वापस से बेसिकली ये बन जाएगा ना, इसका हाइड्रोलिसिस करने पे यही तो बनेगा. और अगर इसकी तुम सोडा लाइम से रिएक्शन करा दोगे तो ये बेसिकली क्या होगा, CO2 निकल जाएगा यहाँ से और आपको क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा. तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है ना? तो S इज NaOH+. द लास्ट स्टेटमेंट इज ये जो S रिएजेंट है वो NaOH+ है. ये क्या बात हुई? NaOH+, ये तो एसिडिक बेसिक मीडियम एक साथ आ गए. या तो आप हाइड्रोलिसिस करते हो एसिडिक मीडियम में या फिर आप हाइड्रोलिसिस करते हो बेसिक मीडियम में. आप
न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाओगे बिकॉज यू नीड एक्टिवेशन, ईदर वे तो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे जो बात करता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की। तो आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं जो आप पॉज करके निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कितने हैं बेसिकली। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए मैंने एक चीज बताई थी कि जब एक ही कायरल सेंटर हो, ठीक है, एक ही कायरल सेंटर हो एक ही हो, तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर मल्टीपल कायरल सेंटर की प्रॉपर्टी है तो जो एक्चुअल फिनोमेना है ऑप्टिकल एक्टिविटी का वो होता है एसिमेट्री। तो आपको एसिमेट्री से देखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बीच में से पीओएस जा रहा है, यहाँ पर बीच में से पीओएस जा रहा है ना, क्योंकि मिथाइल मिथाइल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देंगे, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आपके पास देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर देखो ये साफ पता चल रहा है कि ये एक कायरल सेंटर है, ठीक है। उसके अलावा ये एक कायरल सेंटर, ये तो नहीं है, ये वाला एक कायरल सेंटर है। तो दो आपके पास कायरल सेंटर है। उसके अलावा आपके पास इंडिविजुअली देखा जाए तो क्या और कोई कायरल सेंटर नजर आ रहा है? नहीं, फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन एटलीस्ट ये 2 कायरल सेंटर हैं आपके पास। और इसमें कोई भी ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इधर मिथाइल ग्रुप है ये और इधर इथाइल ग्रुप है, तो आपका ये वाला प्लेन भी कैंसिल हो गया, इधर से तो कोई प्लेन जाएगा ही नहीं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर प्लेन भी इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये सारे के सारे बेसिकली आउट प्लेन ही होंगे, है ना। तो यानी कि ये वाला कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इधर वाले कंपाउंड में भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं करा सकते, क्योंकि एक मिथाइल अबव एक बिलो है, तो आप किसी भी तरह से प्लेन डालो, इनको आप रिफ्लेक्ट नहीं करा सकते इक्वल टू में, या बाइसेक्ट नहीं कर सकते, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि सिमिलर रीजंस इस पे भी अप्लाई होते हैं। इसमें भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए तीनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद The order of reactivity for the following compounds with electrophile E plus, why electrophilic substitution? So basically हमें पता है बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर डिपेंड करता है हेविली इस बात पे कि उससे कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं। सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे तो जितने ज़्यादा डोनेटिंग लगेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन बढ़ती जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए रिएक्शन की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हमें पता है ये विड्रॉइंग है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी डोनेटिंग ग्रुप है ना। ज़्यादा डोनेटिंग कौन है? अमीन, है ना। हमें पता है एनिलीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए तो जब इसका नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड फॉर्म में कर देते थे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, इसका जब कंसंट्रेटेड पे करते हैं नाइट्रेशन 2,4,6 नहीं, मेटा प्रोडक्ट भी मिल जाता है इसमें, है ना। और उसके तो रीजन खैर कुछ और है, लेकिन हाँ जब आप इसका ब्रोमिनेशन करते हो, कंसंट्रेटेड ब्रोमिनेशन कर देते हो, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। फिनॉल में भी ऐसे ही आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है और आपको उनको डाइल्यूट करना पड़ता है यूजिंग सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तब आपको सिर्फ ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? NH2 वाला, यानी कि थर्ड, ठीक है। उसके बाद कौन होगा? फर्स्ट। उसके बाद कौन होगा? सेकेंड। उसके बाद कौन होगा? फोर्थ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम, देखो एक कीटोन MEMGBr ड्राई ईथर में डाला है तो क्या होगा? ये बनेगा, यही तो बनेगा। MEMGBr जब अटैक करता है ड्राई ईथर पे तो यही तो बनता है, यहाँ पर Me लगेगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस, देखो MEMGBr ड्राई ईथर O- बनाता है, हाइड्रोलिसिस करने पे बेसिकली आपको OH मिल जाता है। अब देखो कॉपर एट 573 दिया है, हीट किया होगा ऑब्वियसली, तो 573 अगर टेम्परेचर है, हालांकि यहाँ पर केल्विन मेंशन है, ठीक है, स्मॉल के नहीं होगा कैपिटल के होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 573 मतलब हीटिंग हो ही रही है, और कॉपर के साथ जब आप हीट करते हो एक 3 डिग्री अल्कोहल को, तो क्या होता है फिर? ऑक्सीडेशन तो नहीं होता, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इंस्टेड क्या हो जाता है? एलिमिनेशन हो जाता है। ये एनसीईआरटी में दी हुई है सारी रिएक्शंस, बस पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, OH निकलेगा, और सबसे जो सुइटेबल साइट होगी वहां से आपका क्या चला जाएगा? प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल एल्कीन बनेगी, तो सबसे स्टेबल जो मोस्ट हिंडर्ड एल्कीन होगी वो बनेगी, तो इधर वाला प्रोटॉन या उधर वाला कहीं से भी चला जाएगा, ये मैंने निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया है? उसके बाद ये B हो गया आपका, उसके बाद इसने BH3 THF डाला है, यानी कि हाइड्रोबोरेशन किया है इसने, बेसिकली हाइड्रो
बोरेशन। हाइड्रोबोरेशन करने पे क्या होता है बेटा, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग OH का एडिशन हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकोव ये कहता है जो लेस हिंडर्ड या अदरवाइज लेस स्टेबल कार्बन है एल्कीन के टूटने पर, कार्बोकेटायन है, वहां पर आप नेगेटिव रिएजेंट का अटैक कर दोगे तो यहाँ इधर हाइड्रोजन लगेगा और इधर OH। उसके बाद ये क्या हो गया, इसके बाद इन्होंने क्या किया, क्यू रिएजेंट का अटैक कराया और प्रोडक्ट बनाया ये इस तरह दिखाया है। तो बेसिकली इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ये H अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, ये ध्यान से देखो, इसको बस ऐसे घुमाया गया है तो ये मिथाइल तो इस जगह पे आ जाएगा, बस मुझे क्या करना है, डबल बॉन्डों को OH में कन्वर्ट करना है। क्या करूं बताओ, अब देखो द करेक्ट स्टेटमेंट इज रिएजेंट क्यू इज कॉपर एट 573 केल्विन। अगर मैं ध्यान से देखना, ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है, ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल पे जब कॉपर एट 573 करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, कीटोन बनता है ना, तो ये तो कीटोन बना देगा, तो इसका मतलब क्यू ये वाला रिएजेंट हो सकता है। उसके अलावा ए इज साइक्लोहेक्सेनॉल। ए कौन सा, ये क्या ये सही है, नहीं। बी इज दिस, सो बेसिकली क्या बी सही है, हाँ बी सही है, ठीक है, तो बी आपका ये सही हो गया। और रिएजेंट क्यू कैन बी CrO3H+, रिएजेंट क्यू कैन बी CrO3H+, ये भी हो सकता है। और ये स्टेटमेंट भी एक तरीके से सही है क्योंकि क्यू एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर दे तो बेसिकली CrO3H+ भी होता है ना, हमने पढ़े हैं ना NCERT में, ये भी यही काम करता है। तो बेसिकली ये और ये सही ऑप्शंस हैं। इसके ऑप्शंस यहाँ पर ABCD जो है वो बेसिकली शायद कट गए, मतलब आने चाहिए थे बट वो शायद स्लाइड के बाहर चले गए होंगे, तो उसमें मल्टीपल ऑप्शन थे, उसमें से सही करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो आई डोंट थिंक सो इट इज अ बिग डील फॉर यू टू आइडेंटिफाई बेसिकली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एल्कीन्स, इसमें बताना है नॉन एरोमेटिक कितने हैं। बेसिकली नॉन एरोमेटिक की पहली कंडीशन आपके पास नॉन एरोमेटिक बताने हैं, लेकिन देखो नॉन एरोमेटिक वो होते हैं जो यहाँ पर पूछे गए हैं कंप्लीट साइक्लाइजेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मेरी बात सुनना। जिनमें कंप्लीट साइक्लाइजेशन होता तो है लेकिन उनमें किसी वजह से उनकी जो प्लेनैरिटी है या तो वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो चाहे एरोमेटिक रहे हो या एंटी एरोमेटिक, वो नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ द प्लेनैरिटी, बिकॉज वी नो दैट ईदर फॉर एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी प्लेनैरिटी इज वेरी क्रूशियल, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है, ये साइक्लो-ऑक्टा टेट्राईन है, क्या है बेटा, साइक्लो-ऑक्टा टेट्राईन, साइक्लो-ऑक्टा टेट्राईन। ये कैसा होता है, टब शेप्ड होता है, हर बच्चे को पता है, पता होना चाहिए। ये कैसा होता है बेटा, टब शेप्ड मॉलिक्यूल होता है, नॉन प्लेनर होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एरोमेटिक है क्योंकि 6 पाई सिस्टम है, एरोमेटिक है। इस वाले में ये तुमने पढ़ा होगा इंटरनल हाइड्रोजन रिपल्शन होता है, इस वजह से ये भी कैसा होता है, नॉन प्लेनर हो जाता है, ये बेंड इस तरह से फोल्ड हो जाता है, ये नॉन प्लेनर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्या है, ये वाला आपका एरोमेटिक है क्योंकि 6 पाई है नॉर्मली, ठीक है। तो ये वाला एक तो नॉन प्लेनर हो गया और ये वाला एक नॉन प्लेनर हो गया, तो इस वजह से ये दोनों क्या हो गए। ये वाला अदरवाइज क्या होता, इसे तुम अदरवाइज एरोमेटिक बोलते, उसको तुम अदरवाइज एंटी एरोमेटिक बोलते, दोनों ही ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक। ये इकलौता ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है जो एरोमेटिक नहीं रह पा रहा बिकॉज ऑफ द इंटरनल रिपल्शंस। एक और इंपॉर्टेंट बोनस बात कि अगर इस वाले सेम एनुलीन में ये इंटरनल जो हाइड्रोजन से इन्हें हटाकर एक ब्रिज बना दिया जाए, कितने भी n नंबर ऑफ एटम्स का ब्रिज बना दिया जाए, तो यहाँ पर इंटरनल हाइड्रोजन का रिपल्शन खत्म हो जाता है, इस तरह का कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है क्योंकि अब पूरी रिंग जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिंग है वो पूरी प्लेनर हो चुकी है और ये जो इंटरनल हाइड्रोजन रिपल्शन कॉज कर रहे थे इनके बॉन्ड्स को हमने आउटप्लेन पहुंचा के निपटा डाला, ठीक है। तो ये वाली स्पीशीज एरोमेटिक हो जाती है, ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान से, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज HBr ETOH। बहुत ही वंडरफुल प्यारा कॉन्सेप्ट है। HBr का एडिशन तो करना है लेकिन ETOH की प्रेजेंस में। याद रखना, HBr का एडिशन जब भी करोगे अल्कीन पे किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में तो अटैक करने वाला एनायन होगा Br-, लेकिन जैसे ही वहां पर कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ जाए, जिन बच्चों ने मेरा वन शॉट देखा है उन्होंने ये चीज अच्छे से समझ ली होगी कि हाउ डज द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अफेक्ट्स द और हिंडर्स द एक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, राइट।
सो ये एक्सेस में होने की वजह से खुद भी एज अ पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। तो जब सेकेंड स्टेप में कैटायन पे अटैक करने की बारी आती है, यहाँ पर कौन अटैक कर देता है? OH। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर कैटायन बनता है तो थोड़ा सा ध्यान हमें रीअरेंजमेंट का भी देना होता है। अभी एक चीज़ ध्यान देना, जैसे ये है हमारे पास क्वेश्चन में, जब आप इस पे अटैक करोगे H+ का, सबसे पहले तो ये होता है ना HBr के सिग्मा स्टार में ये जाएगा, यहाँ से जाएगा, क्योंकि सिग्मा स्टार में अटैक हुआ है तो सिग्मा टूटेगा कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। तो यहाँ क्या बनेगा बेटा? कार्बोकेटायन बनेगा बेसिकली, और इधर क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा, 1H शिफ्ट हो जाएगी। 1H शिफ्ट से ये कार्बोकेटायन एक्चुअली में बेंजाइलिक हो रहा है, तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। उसके बाद इस पर कौन अटैक कर देगा? OETH। ये इधर आएगा, अटैक कर देगा, OET बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? राइट, OET बनेगा। और एक चीज़ यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप भी है एडिशनल, वो मैं लगाना भूल गया, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप, और बस खत्म हो गया आंसर। तो ये ऑप्शन आ गया आपका, है ना। तो अच्छा, तुम कहोगे इसका एक्सेस प्रोटॉन भी तो था, OH+ बनेगा। अरे भाई, बेस तो तुम्हारा घूम ही रहा है ना, यहाँ पे Br-, वो जो Br- है वो इसको ले जाएगा, तो HBr यहाँ पर रिमूव भी हो जाएगा साथ के साथ, तो आपको अल्टीमेटली प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? C। ठीक है, चलो आगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स? भाई अब सुपर पोजिशन कर करके देखोगे तो बहुत वक्त गुजर जाएगा, इसीलिए बेटर है कि ऐसे सिस्टम्स में कॉन्फ़िगरेशन निकालो और सिंपल फंडा अपनाओ। अगर सारे कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन्स के फॉर द स्ट्रक्चर्स अंडर कंपैरिजन, सारे कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन्स के सारे कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर आ रहे हैं, जैसे मान लो ये RR है और ये यहाँ पर ये SS आ रहा है समाओ, तो ये दोनों इनेंशियोमर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि RR का RR आ रहा है तो ये दोनों आइडेंटिकल है, इसका मतलब घुमा फिरा के वो सेम स्ट्रक्चर दिया है आपको, आप समझ नहीं पा रहे हो बस उसको घुमाया कैसे है ओवरऑल। या फिर अगर ऐसे इन दो पॉसिबिलिटीज के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी आ रही है तो वो सब डायस्टीरियोमर में जाती है, जैसे RS हो जाए या फिर SR हो जाए, है ना। ना तो सारे एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हो, ना सारे एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हो फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर्स। तो यहाँ पर ये कैसे होंगे? डायस्टीरियोमर्स। आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन बच्चों ने मुझसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़रूर इस चीज़ पर एम्फेसाइज करता हूँ, ये टाइम बचाती है। अगर आपको दिख रहा है कि एक बॉन्ड की स्टीरियोकेमिस्ट्री सिमिलर है, दूसरे बॉन्ड को एक बार रोटेट किया गया है, तो इसका मतलब है कि इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन X है तो इसकी भी X रही होगी, लेकिन अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन Y है तो इसकी Y प्राइम होगी। एक की सेम एक की डिफरेंट, मतलब क्या बन गया? डायस्टीरियोमर। क्योंकि अगर दोनों की सेम रहती तो आइडेंटिकल, दोनों की डिफरेंट हो जाती तो इनेंशियोमर, राइट। अब इस क्वेश्चन को करो, तब तक मैं एक घुट पानी पी लूं। Br2CS2 नॉन पोलर है, ब्रोमीन का एडिशन है एल्कीन पे, तो ब्रोमीन तो Br2 तो लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन सा एडिशन होता है? एंटी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? ब्रोमीनियम मैकेनिज्म फॉलो होता है, ब्रोमीनियम आयन मैकेनिज्म। कैसे? अब जैसे मान लो, अच्छा यहाँ पर ना प्लेनर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन लिख के मान के चले हैं, वो चेयर फॉर्म वाली मान के नहीं चल रहे हैं, हम प्लेनर वाली ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। मान लो ये ब्रोमीनियम आयन ऐसे बन गया अबव द प्लेन, जब पहले ब्रोमीन पे इस एल्कीन का अटैक हुआ, ठीक है। तो जो दूसरा Br- आएगा वो बेटा कहाँ से आएगा? बिलो द प्लेन से आएगा, तो वो बिलो द प्लेन से आएगा और इधर से कहीं से भी खोले, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है, जनरली वहां से खोलता है रिंग जहां से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी हो, बट यहाँ तो सिमिलर है ना दोनों तरफ से, तो आपका ये Br अगर अबव आ रहा है तो दूसरा वाला बिलो आएगा। इसका उल्टा वाला भी पॉसिबल होगा एज एन इनेंशियोमर, ठीक है। तो याद रखना ये वाला सही है, क्योंकि इसमें सिन बन रहा है, इसमें भी सिन बन रहा है, उसमें तो एलाइलिक हो रहा है, ये तो NBS के साथ होता है, ऐसे तो नहीं होता। NBS नॉन पोलर सॉल्वेंट जब लोगे तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाता है। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब सारे ही अच्छे हैं, बट ये वाला पर्सनली बनाया था। तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O which smells like bitter almond। अब ये सुनते ही जिन बच्चों ने 12th क्लास में लैब में प्रैक्टिकल किया है वो तो समझ जाएंगे क्या है, क्योंकि लैब में प्रैक्टिकल कराने वाले केमिस्ट्री टीचर इस बात पे बार बार एम्फेसिस करते हैं और सुंगवाते भी हैं कि देखो बच्चों आओ सूंघो, इस पर्टिकुलर एल्डिहाइड की स्मेल कड़वे बादाम जैसी है। मैंने सूंघी है, मुझे पता है। बेंजल्डिहाइड ही इकलौता ऐसा कॉमन एल्डिहाइड है जिसकी स्मेल
बिटर आलमंड जैसी है। ट्रूली, सच्ची में भाई मन खराब हो जाता है। कभी बादाम में कड़वा बादाम गया है मुंह में, कैसा लगता है, अजीब सा, वैसे ही बिल्कुल सेम वैसी स्मेल है भाई, ट्रूली। तो यहां से तुम्हें एक चीज डायरेक्ट पता चल सकती है, देखो, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट्स व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, टॉलेंस। और इससे और बात पक्की हो गई कि ये क्या है, एक एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। अच्छा, मेरे जो केमिस्ट्री टीचर थे उन्होंने मुझे एक बहुत कमाल की बात कही थी कि अगर कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन के नंबर ऑलमोस्ट बराबर हो, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, उसका मतलब वहाँ पे बहुत ही हाई अनसैचुरेशन है। और ऐसे में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि अगर आपके पास कार्बन का नंबर 5 या 6 है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पास एक बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पर C7H6O है, कार्बन का नंबर जो है ऑलमोस्ट हाइड्रोजन के बराबर है, तो यहाँ आप बेंजल्डिहाइड के बारे में वैसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग हो सकती है। ठीक है, ये जो कंपाउंड पी है, इसको जब हम कंसेंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, आओ कर दे, हमें तो पता चल गया ना ये क्या है, कड़वे बादाम से पता चल जाना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, तो अगर इसको हम बेसिकली ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, तो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड Q and R। तुम समझ रहे होगे क्या हो रहा है। ठीक है, और कंसेंट्रेटेड है। ठीक है, बताओ कौन सी रिएक्शन है, जल्दी यहाँ पे कमेंट में लिखो। ठीक है, Q गिव्स टर्बिडिटी अपॉन हीटिंग। इस Q की जब हम हीट करते हैं ZnCl2 या ZnHCl के साथ हीट करते हैं तो टर्बिडिटी देता है। समझ में आ रहा है बेटा क्या जा रहा है, ये क्या है, लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट कौन देता है, एल्कोहल्स। तो यानी कि Q क्या है, एल्कोहल। R CO2 रिलीज कर देता है जब उसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हैं, यानी कि ये क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब ये क्या है, R एसिड, क्योंकि ये क्या रिलीज कर रहा है, CO2। कब, जब सोडा लाइम यानी कि NaNH2 के साथ, सोडा लाइम माने CaO प्लस NaOH, इसके साथ ट्रीट करने पे क्या है, CO2 रिलीज कर दे रहा है। ये तो सब पड़ी भी रिएक्शंस है। तो Q क्या है, अल्कोहल, ये क्या है, एसिड। ये कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो। इतना तो समझ गए, अरे इतना तो समझ गए होगे, ये कैनिजारो रिएक्शन, ये बेंजल्डिहाइड। अब देव जवाब, अगर इस R का, जो कि एसिड है, R क्या है बेटा, पार्डन मी फॉर माय ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। ठीक है, COOH, इसकी जब तुम LiAlH4 से रिडक्शन करोगे, रिडक्शन ही तो होता है, अरे ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि नहीं। जितने हाइड्राइड डोनर्स होते हैं, NaH हाइड्राइड डोनर नहीं है, लेकिन फिर भी वो हाइड्राइड उसका बेस की तरह काम करता है, तो उसे हाइड्राइड डोनर मान सकते हैं। ठीक है, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर आपका कौन सा एक बड़ा मशहूर है, डाइबाल-H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो भी है ना। उसके अलावा ZnBH4 है ना, ये सारे क्या है, हाइड्राइड डोनर्स है। तो ये हाइड्राइड डोनर्स क्या करते हैं, या BH4-, ये भी क्या है, हाइड्राइड डोनर है। तो ये सारे हाइड्राइड डोनर्स क्या करते हैं, H- एज अ न्यूक्लियोफाइल देते हैं, अपार्ट फ्रॉम NaH। ठीक है, NaH जो H- देता है वो बेस की तरह काम करेगा, कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, क्योंकि H- एज अ न्यूक्लियोफाइल स्टेबल नहीं है, जाके अटैक नहीं कर सकता। वो इतना अनस्टेबल है कि फटाफट प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके अपने एनवायरनमेंट से H2 में रिलीज हो जाता है। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और आपको पता है LiAlH4 बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। एसिड, एस्टर, ईथर, ईथर क्या गया, एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइड, किसी को नहीं छोड़ता। ठीक है, तो यहाँ से एक बोनस नॉलेज ये भी याद रखना कि जो NaBH4 है वो सिर्फ और सिर्फ एसिड, क्लोराइड, एल्डिहाइड और कीटोन, उसी को रिड्यूस करता है, उसके आगे नहीं जाता। तो ये क्या बना देगा, CH2 कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, CH2OH। अब दो आंसर, P इज बेंजल्डिहाइड, Q इज अ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, R इज रिएक्शन फ्रॉम R to Q विद LiAlH4 इज रिडक्शन रिएक्शन, ये ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसने ऑक्सीडेशन बोला है। P विद कंसेंट्रेटेड NaOH गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि कैनिजारो है। P कौन सा है, P यही तो है, ये तो कैनिजारो दे रहा है ना बेटा, एल्डोल थोड़ी दे रहा है, तो ये गलत हो गया। तो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हो गए हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट। तुम्हारी फेवरेट रिएक्शन, बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है, किसी भी एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन आप किससे कराते हो, पैलेडियम बेरियम सल्फेट H2 देना भूल गया वो, पैलेडियम बेरियम सल्फेट H2 क्या है, नाम लिखो नीचे, फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, रोजनमुंड। क्या है, रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन क्या करता है, EtCOCl को जब आप रोजनमुंड लगाते हो कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है।
है ना। उसके बाद क्रोम CrO3 फिर से क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा बेटा, है ना। CrO3 इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद रेड फॉस्फोरस Br2, रेड फॉस्फोरस Br2 क्या करता है, क्या करता है बेटा, इसके बाद हाइड्रोलिसिस भी है, वो पूरा नहीं देगा कई बार, बिकॉज इट इज वेल अंडरस्टूड कि हाइड्रोलिसिस तो होना ही है जस्ट टू न्यूट्रलाइज द थिंग्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, HBZ रिएक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते, हेल्वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फा ब्रोमिनेशन, अल्फा ब्रोमिनेशन। तो क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं बेटा, उनके इधर वाले अल्फा कार्बन पे क्या हो जाता है, ब्रोमीन अटैक कर देते। तो ये क्या, एक अल्फा ब्रोमो एसिड बन गया। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है पी के बारे में। पी क्या है, प्रोडक्ट। पी इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, यस इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। पी इज एन एसिड ब्रोमाइड, नो। एसिड ब्रोमाइड क्या होता है, COBr, COBr, ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है। अब P इज दिस वन, नो, देखो ये सेम ही हो गया ना, एसिड ब्रोमाइड। P इज दिस वन, यस, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। चलो अब देखो बेसिकली बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है बिना रिएक्शन के भी वही आ रहा है जो रिएक्शन करके आ रहा है, बट उसने तुम्हारा पेशेंस चेक किया है बस कि तुम्हें पता है कि नहीं कि यहाँ होगा क्या। देखो, क्योंकि वो इसे बहुत ब्यूटीफुली चेंज भी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ही बनाया है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा ना, ठीक है। बहुत प्रोग्रेशन बहुत ही ज़्यादा है रिएक्शंस का, बट है सिंपल, ठीक है। ये है, अगर आप इसकी रिएक्शन फिर से वही आ गया बेटा, PDBaSO4H2। तो जब आप इसकी रिएक्शन फर्स्ट से कराओगे, मैं सिर्फ यहाँ फर्स्ट लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, वहाँ से मैच कर लेना। क्या होता है बेटा, क्या होता है, ये जो होता है आपका एसिड क्लोराइड या एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपने इसकी रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराई, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, है ना, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस उसमें इंक्लूड हो गया। उसके बाद आपने क्या किया है, बेसिक मीडियम में KOH लिया है। अब यहाँ पर ना बच्चों का दिमाग क्यों घूमेगा, वो सोचेंगे, जो रट के आए होंगे वो ये सोचेंगे कि KOH HCN तो सर हमने साइनोहाइड्रिन में पढ़ा था और वो तो एल्डिहाइड में ही होता है या कीटोन में बेसिकली हमने पढ़ा था, वो तो हट गया। यहाँ पे तो बच्चे सोचेंगे कि यार ये हो सकता है साइनोहाइड्रिन बने, इसको देख के लगेगा साइनोहाइड्रिन, तो यही गलती करोगे। अब देखो अल्कोहल पे HCN KOH क्यों नहीं अटैक कर सकता, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। KOH क्या है, OH माइनस, ये OH माइनस क्या करेगा, इसका प्रोटॉन ले लेगा, यहाँ से जनरेट क्या करेगा, CN माइनस। अरे भाई ये CN माइनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी तो दे सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन देगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, CN, ठीक है, CN आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, 50 बार समझा चुका हूँ और बोल भी चुका हूं कई बार, वन शॉट जो पीछे लिया उसमें भी बोला था कि साइनाइड का डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करने पर बनता है एसिड और साइनाइड का रिडक्शन करके हाइड्रोलिसिस करने पर बनता है एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये क्या बनेगा, COOH। अब क्या है, अब ध्यान से देखो, उल्टा ही है। इसने यहां पर RMgX डाला, मतलब ETMgBr डाला। अब यहां पे बहुत काम की रिएक्शन है, ड्राई ईथर होगा क्या ये ETMgBr यहाँ अटैक करेगा, ऊपर जाएगा और इसको निकाल देगा। देखो जब वो कुछ ना देकर रखे तो तुम 1 इक्विवेलेंट मान के चलोगे, पहली बात तो, यानी कि उसके पास देने के लिए एक ही इथाइल है, ET माइनस है। देखो ET माइनस जो है ना, उसके साथ एक खास बात क्या होती है, मैंने बताई भी थी कि ET माइनस को अगर प्रोटिक एनवायरनमेंट मिल जाएगा तो वो रादर एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट विल फर्स्ट एक्ट एज अ बेस, बिकॉज वी नो दैट एसिड बेस रिएक्शंस आर वे मोर फास्टर। तो ये ET माइनस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को ले जाएगा, क्या बना देगा, और उसके बाद फिर से जब तुमने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो वापस से तुम्हें एसिड मिल गया। तो बेसिकली तुम बस तुम्हारा दिमाग घुमाया है और कुछ नहीं, तुम्हारे बेसिक चेक किए हैं, एसिड मिल गया। अब बताना इसमें कितने कायरल सेंटर्स हैं, एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ये है, बस इसके अलावा और कोई कायरल सेंटर है ही नहीं। तो बेसिकली कायरल सेंटर कितने, 2, और वो तो पहले से थे। लेकिन हाँ अभी तो फिलहाल यहाँ पर तुम 2 आंसर पे टिक कर दोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब ये बना था बेटा यहाँ पर, अगर वो यहाँ पर इफ उसने यहाँ पर HBZ कर दी होती, अगर उसने HBZ कर दी होती तो मजा आ जाता। तो क्या हो जाता, ये बोनस है,
ये मैं रेड से दिखा देता हूँ बोनस ना, नहीं तो तुम सोचोगे रिएक्शन में तो दिया ही नहीं है, फिर सर ने क्यों दिखाया है। तो अगर तुम, ये बोनस है, बोनस, अगर तुम यहाँ पर HBZ रिएक्शन लगाते हो तो क्या बनेगा, यहाँ पर Br लग जाता। अब ये भी एक कायरल सेंटर हो गया, अगर तुम ध्यान से देखो तो अब आपके पास 3 कायरल सेंटर हो गए, 3, समझे। तो इस तरह वो रिएक्शन को ट्रिकी बना सकता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तुम्हारी एक एमीन्स की बहुत अच्छी नॉलेज चेक होने वाली है यहाँ पे। अमीन है मतलब अनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड SnCl2 से रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम क्यू की बात करते हैं। तो देखो क्यू में क्या होगा, अगर तुम्हारे पास एनिलीन है, मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था कि अगर तुम इसका डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हो, NCERT में पढ़ पढ़ के रट रट के तुम भी परेशान हो गए हो, ये है ना, कि ये मेटा प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट में देता है, मेटा प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट में देता है। उसके बाद अगर आप इसका SnCl2 HCl करोगे तो क्या बनेगा, SnCl2 HCl क्या करता है, नाइट्रो को या नाइट्राइल को रिड्यूस करता है, या नाइट्रो को रिड्यूस करके क्या बना देगा, अमीन बना देगा फिर से, तो आपको ये मिलेगा। तो ये काफ़ी मेजर अमाउंट में मिलेगा आपको, है ना। तो जो Q है, अब उसमें आपने देखो उसने पूछा क्या है, मेजर प्रोडक्ट P एंड Q, तो Q वाले में उसने बोला है बोथ ऑर्थो एंड मेटा नाइट्रो एनिलीन एक में, और Q में एक में सिर्फ बोला है पैरा, ठीक है, एक में बोला है बोथ ऑर्थो एंड मेटा। अब ध्यान से देखो, एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर इधर Q में दिया है पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही सोच समझ के पढ़ो, Q वो वाला है, तो Q में क्या क्या दिया है, पैरा नाइट्रो एनिलीन, क्या खाली मेजर प्रोडक्ट पैरा नाइट्रो एनिलीन बनेगा, एनिलीन, ठीक है, या फिर ऑर्थो एंड मेटा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है, या फिर फिनाइलीन डायमीन, पैराफिनाइलिन डायमीन मिलेगा, या फिर मेटाफिनाइलिन डायमीन मिलेगा। तो देखो, और ऑर्थो, अब देखो ध्यान से, तुम्हें पता है जब हम नाइट्रेशन कराते हैं डायरेक्ट तो मेटा प्रोडक्ट मिलता है 47% के आसपास और 52% के आसपास मिलता है, पैरा प्रोडक्ट तो दोनों ही लगभग मेजर हुए ना, मेजर तो अभी भी इनफैक्ट पैरा ही होता है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हम मेटा को भी मेजर मानेंगे क्योंकि काफ़ी कम गैप है। तो आपको एक तो ये मिलेगा और एक कौन सा मिलेगा, पैरा वाला, और इसको क्या बोलते हैं, फिनाइलिन डायमीन। फिनाइलिन डायमीन, इसका क्या नाम है बेटा, फिनाइलिन डायमीन। बस ये कौन सा है, 1,4 यानी कि मेटा, और वो कौन सा बनेगा, एक और दूसरा पैरा। तो 1,4 और 1,3 दोनों बनेंगे बेसिकली, 1,4 ये वाला नहीं है, ये 1,3 है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, बिना दूसरे को देखे आप इसका आंसर लगा सकते हो, लेकिन दूसरे को देख लो। जब हम यहाँ देख रहे हैं तो पहले उसने एसाइलेशन कराया है, यहाँ पर इसको डोंट बॉदर इट मच, सबस्क्रिप्ट में जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने NH2 की रिएक्शन कराई इसके साथ तो क्या होता है, ये प्रोटेक्शन हो जाता है यहाँ पर एनिलीन का, बताया था ना बेटा, बेसिसिटी रिड्यूस करने के लिए, तो आपको ये मिलेगा। अब ये मेटा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा क्योंकि अब इसका लोन पेयर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लोन पेयर और ज़्यादा बिजी हो गया है। तो अब अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते भी हो तो एनिलीनियम आयन में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जब आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हो तो ओनली प्रोडक्ट इज मेटा, ओनली प्रोडक्ट मेजर जो बनेगा वो पैरा बनेगा, ये NHCO CH3, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर NO2। उसके बाद जब आप SnCl2 HCl करोगे तो बेसिकली क्या होगा, ये दोनों ही, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, दोनों हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, ये भी और ये तो रिड्यूस हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पर वापस से NH2 मिल जाएगा। हालांकि उसके लिए वो अलग से जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा, वो अलग से हाइड्रोलिसिस देगा आपको, इसके लिए अलग से हाइड्रोलिसिस देगा एसिडिक, लेकिन एसिडिक मीडियम में इसका अपने आप खुद ब खुद हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो एसिडिक मीडियम यहाँ पर है तो वो अपने आप हो जाएगा, इसलिए मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और ये NH2 में तो ओनली प्रोडक्ट विल बी 1,4 डाई, मतलब 1,4 क्या बोलोगे, फिनाइलिन डायमीन या फिर पैराफिनाइलिन डायमीन। तो P इज ओनली पैराफिनाइलिन डायमीन, तो C ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब देखो आगे, ये काफ़ी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। जेई वाले अगर नहीं कर पा रहे हैं तो घबराना मत, ये थोड़ा सा एडवांस है।
थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो एडवांस आईआईटी एडवांस की तैयारी करने वाले इस पर थोड़ा सा गौर फरमा सकते हैं। ध्यान से देखना, या हो सकता है ये बेसिकली, अब ध्यान से देखना, क्या है, एक कंपाउंड दिया है आपको और उसका फर्स्ट जो दिया है पी फॉर्मेशन के लिए, उसमें इसने क्या किया है, H2O2 या H2SO4 यूज़ किया है और फिर हीट किया है। अब देखो ऐसा होता है जब आपके पास कोई NMe2 टाइप का कोई कंपाउंड हो या NR2 और आप उस पर H2O2 ये H2SO4 यूज़ करते हो, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है नाइट्रोजन को। देखो इस पे बेटा लोन पेयर है, जब आप यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हो ना, जैसे H2O2 हो गया या H2SO4 हो गया, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर NMeMeO, इसके 4 बॉन्ड पॉजिटिव, इस पे 1 बॉन्ड नेगेटिव, ये बना देता है। और यहाँ पर फिर क्या होता है, जब आप हीट करते हो ना, हीट करते हो तो ये अपने सिन वाले हाइड्रोजन को, सिन हाइड्रोजन को, जो सिन बीटा हाइड्रोजन है इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, जो सिन बीटा हाइड्रोजन है उसको ले जाता है और ये अपना इधर दे देता है और इधर से कट लेता है। इस टाइप के एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा, EI एलिमिनेशन। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसे पता होगा, इंटरनली एलिमिनेशन हो जाता है और ये सिन एलिमिनेशन टाइप की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको बेसिकली एक जो हाइड्रोजन बचा हुआ मिलेगा वो ऊपर वाला मिलेगा और आपका ड्यूटेरियम यहाँ पर नीचे क्या है, आइसोटोपिक लेबलिंग कर रखी है, D जाएगा बेसिकली यहाँ पर और H रह जाएगा। तो H यहाँ पर रह जाएगा और इधर तो आपका H है ही, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है, ये बन गया। लेकिन जब आप इसी की रिएक्शन पहले मिथाइल आयोडाइड से कराओगे तो क्या होगा, इसके सिग्मा स्टार में अटैक मारेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर आयोडीन को बाहर कर देगा, क्या बनेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल नाइट्रोजन, कुछ इस तरह से NMe3 प्लस। अब तो इस पे है नहीं लोन पेयर, अब तो इसका ऑक्साइड बन नहीं सकता। तो अब जब आप इसको, यहाँ पर देखो DH है, अब जब आप इसको हीट करोगे KOH के साथ तो आपको पता है ये क्या देगा, E2। या अब देखो ये अगर बेसिकली तुम कुछ भी करा लो, अगर तुम E2 कराओगे या E1 भी कराते हो तो भी दोनों है एंटी एलिमिनेशन ही एक तरीके से, बल्कि मोर स्पेसिफिकली देखा जाए तो यहाँ पर E2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि E1 कहाँ होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली हाई, यानी कि 3 डिग्री वाला कोई कार्बोकेटायन बन रहा हो या फिर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन बन रहा हो जो यहाँ नहीं बन रहा, तब हम E1 यूज़ करते हैं, अदरवाइज E2 ही होता है। तो E2 क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी यानी कि लिविंग ग्रुप, जो कि ये है, क्या बताया था मैंने, अगर आपने मेरा वन शॉट देखा होगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि लिविंग ग्रुप OH और NH2 को कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो प्रोटोनेट करना नाइट्रोजन के या ऑक्सीजन के ट्राई या बाईवैलेंट कंपाउंड रिस्पेक्टिवली को उसे लिविंग ग्रुप बनाने के एक स्टेप क्लोजर ले जाता है। हीटिंग करने पर ये यहाँ से निकलेगा, कब, जब ये इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा। एंटी बॉन्डिंग का होगा ऊपर, तो यहाँ पर ये एंटी एलिमिनेशन होगा, ये इधर से जाएगा, ये इधर से निकलेगा, तो आपको फिर से यहाँ पर क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी, लेकिन अब की बार आपको यार ड्यूटेरियम मिलेगा और इधर भी आपको हाइड्रोजन, इधर तो है ही हाइड्रोजन, तो वही मिलेगा। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ P इन्वॉल्व्स इन एलिमिनेशन, P ट्रू sin elimination. Product P contains deuterium but P does not. Q में ये Q है, Q में ड्यूटेरियम है, P में नहीं है, ये भी ठीक है। Formation of P involves 6-member cyclic transition state. Formation of P involves 6-member cyclic transition state. ध्यान से देखो, P में अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रांजिशन स्टेट की अगर यहाँ बात करी जाए, थोड़ा सा मैं यहाँ बना रहा हूँ, आई होप आप लोगों को दिखे ब्लू कलर से, इसको दोबारा बना रहा हूँ, देखना ध्यान से, थोड़ा सा जानबूझ के फैला रहा हूँ। ये नाइट्रोजन था बेटा, ये इसका ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, तो ये एक 5 मेंबर्ड की ट्रांजिशन स्टेट बनती है EI में, यहाँ पर नॉट 6 नहीं 5, तो ये गलत हो गया, सॉरी ये गलत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ P इज नोन एज कोप एलिमिनेशन, ये ठीक है, इस टाइप के एलिमिनेशन को कोप एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है, आप गूगल भी कर सकते हो, कोप एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्चुअली क्वेश्चन है ये थोड़ा सा उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है जहाँ पर MSQs आया करते थे, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है, बट ये आपकी स्किल्स को बहुत इंप्रूव करता है। तो ये आप रोने मत बैठ जाना कि भैया हमें तो सिर्फ MCQ की आदत है क्योंकि हम JEE मेंस के विद्यार्थी हैं, नहीं, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें रेडी रहना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए। तो MSQ इज द बेस्ट थिंग दैट कैन लीड यू टू दैट चेक बेसिकली। तो यहाँ पर बेसिकली ये 3 स्टेटमेंट्स A, B एंड D सही होंगे और C वाला इनकरेक्ट होगा।
ठीक है, और वो इसको MSQ नहीं है ये, तो उसको MCQ बना के भी तो पूछ सकता ना, ये 1 2 3 4 दे देगा, उसके बाद ABCD में 4 ऑप्शन दे देगा वो, इन्हीं में से मिक्स करके। द प्रोडक्ट वाई इन द अबव रिएक्शन सीक्वेंसेस। देखो हमें पता है, हमें एक चीज तो पता है कि जब हम किसी प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं, या किसी sp3 हाइब्रिड अल्कोहल की PCl5 से SOCl2 से या PCl3 से रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, OHCl से रिप्लेस हो जाता है। बट ये C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन PCl5 से शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, बट करती ये भी काम है, 2 बार क्लोरीन ऐड करवा देगी वहां पर। अब मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो कभी भी अगर आप इस तरह का कोई डबल बॉन्ड है, कीटोन है, और आप उसकी रिएक्शन PCl5 से कराते हो, तो इस तरह की स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाता है, 2 क्लोरीन दे देगा। ठीक है, मैकेनिज्म में जा सकते हैं, बेसिकली है कुछ नहीं। डिराइविंग फोर्स क्या है यहाँ पर वो ध्यान देना, बस मैकेनिज्म अपने आप समझ जाओगे। डिराइविंग फोर्स है P डबल बॉन्ड O का बनना, क्योंकि ये बहुत स्टेबल होता है। तो बेसिकली एक रफ आइडिया दूं तो लोन पेयर पहले यहाँ अटैक करेगा, Cl बाहर जाएगा, वो Cl यहाँ अटैक करेगा, इसको खोल देगा, फिर ये सिंगल बॉन्ड वाला OPCl4 बन जाएगा और एक Cl यहाँ लग जाएगा। उसके बाद फिर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर उधर फॉस्फोरस के साथ बैक बॉन्डिंग करेगा, एक और क्लोरीन बाहर करेगा, और दूसरा क्लोरीन आके क्या करेगा, या फिर से अटैक करेगा और इसको सिग्मा बॉन्ड को भी तोड़ देगा, तो POCl3 निकल जाएगा और 2 Cl यहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, स्मार्ट हो तो समझ गए होगे, नहीं तो कोई बात नहीं, बस ऐसे डायरेक्ट याद रख लो। उसके बाद क्या किया उसने, अरे एलिमिनेशन, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन कराओगे, इनमें से किसी भी एक तरह का प्रोटॉन निकल जाए, यहाँ से क्या मिलेगा, एक क्लोरीन लगा रह जाएगा, इधर एल्कीन, ये और ये सेम ही तो है। ठीक है, चलो, द प्रोडक्ट X एंड Y इन द अबव रिएक्शन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नेस्ट में आया था, ये नेस्ट में, नेस्ट जिन बच्चों को नहीं पता, ये चिड़िया का घोंसला नहीं है, ये वो एग्जाम है जो बेसिकली जिसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं, और आप लोगों को ज़रूर, अगर आप JEE एडवांस के लेवल तक जा रहे हैं तो आपको एक बार इस पर नज़र ज़रूर डालनी चाहिए। इसका जो बेसिकली नेस्ट का जो नाम है वो है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, और ये बेसिकली कंडक्ट कराता है नाइजर भुवनेश्वर, और रिसर्च प्रोग्राम्स जैसे कि BSMS होते हैं हमारे, उनके लिए जो बच्चे उठाते हैं ये 12th के बाद, ये उनके लिए होता है, और काफ़ी ब्रिलियंट क्राउड जाता है यहाँ पर। और आपको जान के बड़ी हैरानी हो सकती है कि 60 नंबर के एग्ज़ाम में इस पेपर में जो कट ऑफ जाती सब्जेक्ट वाइज 5 6 7 नंबर से ऊपर नहीं जाती, तो इसमें काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो रिसर्च बेस्ड माइंडसेट के हिसाब से होते हैं वो आते हैं। तो इफ़ यू आर IIT एडवांस एंथुसियास्ट, आई थिंक यू शुड गो एंड analyze your caliber trying these questions also। ठीक है, तो प्रोडक्ट X एंड Y इन द अबव रिएक्शन, HI के साथ हीट किया हुआ है, आपको पता है ये कुछ हमने पढ़ा था, ईथर की रिएक्शन HI के साथ तो हमने पढ़ी थी, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज क्यों होंगे कि एल्कीन, देखो HI पे एल्कीन भी रिएक्ट करता है और HI से ईथर भी रिएक्ट करता है। अब तुम ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका पाई बॉन्ड पहले जाएगा अटैक करने या लोन पेयर, तो अब तुम तो कमेंट में बता देना, मैं फिलहाल बता देता हूँ कि यहाँ पर लगेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फ्लो का रूल, कि हायर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस होता है वो मोर फेवरेबल होता है। अब लोन पेयर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है तो वो पहले जाएगा ना, पाई बॉन्ड तो फिर भी 2 न्यूक्लियस के बीच में है, लोन पेयर तो फिर भी एक ही न्यूक्लियस के बीच में आता है, तो उस पर तो किसी का इन्फ्लुएंस खास है नहीं, तो वो रिएक्टिव ज़्यादा होगा, तो वो जाएगा HI के सिग्मा स्टार में, सिग्मा को तोड़ेगा, I- बना देगा, और आपको क्या मिलेगा, प्रोटोनेटेड ईथर PH। और फिर हमें ये तो पता ही है कि जो I- होता है वो उस तरफ से अटैक करता है ताकि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने, तो ये यहां अटैक करेगा, इसको खोलेगा, तो क्या बनेगा, PHOH प्लस, ये देखो, अरे रिंग इधर से टूटेगी तभी तो यहाँ ये एलाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा, इधर से टूटेगी तो ये तो यहाँ तो बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऑलरेडी वो sp2 कार्बन है, sp2 sp2 दो एक साथ कैसे आएंगे, है ना। एलाइलिक सिस्टम तो वो तो बनाना नहीं है एलिन, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ये 2 स्पीशीज बनेंगी, लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई। बात ये खत्म नहीं हुई कि यहाँ पर HI एक्सेस में है, अब इसका तो कुछ हो नहीं सकता, एसिडिक मीडियम में इसका क्या होगा, देखो इसका क्या होगा, इसका ये हो सकता है, हाँ इसका भी हो सकता है, अगर आप इसमें HI की रिएक्शन कराओगे तो ये फिर से प्रोटोनेट होगा। अब बताओ ये वाला जो सिस्टम है क्या ये वापस से रिएक्ट करेगा HI से, देखो तुमने
ये रिएक्शन पढ़िए, जब एक्सेस HI लेते हो तो जो अल्कोहल बनता है कायदे से ROH, वो फिर से HI के साथ रिएक्शन करता है और RI में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो R sp3 कार्बन होता है। ये बेंजीन है बेटा, ये बेंजीन है। तो क्या तुम यहाँ से दोबारा से इस पे सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो I- का sp2 सेंटर पे? हाई नहीं, ये तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, लेकिन ये HI यहाँ पर अब वो करेगा जो तुम पहले कराने के लिए बड़े बेताब हो रहे थे। ये इधर से आएगा, यहाँ अटैक करेगा, इधर से खोलेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, इधर क्या लग गया हाइड्रोजन, और अब ये I- आएगा, यहाँ अटैक कर देगा। तो आपको क्या मिलेगा? आयोडीन, आयोडीन मिथाइल। तो आपको क्या मिल गया? PHOH, यानी कि ये दो ऑप्शन गलत। और साथ में क्या मिल गया? ICH2 CHI CH3। क्लियर? गुड। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का सही इस्तेमाल करना इस क्वेश्चन से सीखो यार। क्या घुमा दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। और तुम्हें जान के ताजुब होगा कि ये क्वेश्चन भी शायद नेस्ट में, जहां तक मुझे याद है, नेस्ट 2020 या कुछ में आया था, ठीक है। तो तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। नेस्ट PYQ है ये भी। ये मत सोचना मैं नेस्ट का प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है। और साइंसटा नेस्ट और IIT को पढ़ाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अननेसेसरी प्रमोशन करूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन लाने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये क्वेश्चंस अच्छे होते हैं और तुम्हारी जो नॉलेज है उसमें कुछ चार चांद लगा सकते हैं। और तुम्हें शायद जान के हैरानी होगी कि जहाँ से भी रेप्यूटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे कोई दिमाग के उपज से नहीं आते, उनके लिए एक वैलिड सोर्स चाहिए होता है। रिसर्च पेपर से आते हैं या फिर बुक से आते हैं, जिनके ऊपर अगर कल को कोई स्टूडेंट क्लेम कर दे तो उनके पास क्रॉस में दिखाने के लिए कोई जवाब हो कि हमने इसका आंसर ये क्यों दिया है या ये कॉन्सेप्ट सही है ना। हवाबाजी नहीं कर सकते हैं वो ऐसे नेशनल लेवल के एग्जाम्स में। इसीलिए ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, ये कोशिश करते हैं दूसरे जो हाई लेवल के एग्जाम्स हो या जो अच्छे लेवल के एग्जाम्स हो उनसे क्वेश्चन इंपोर्ट कर लें। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा है, ठीक है। तो नाइजर के हो सकता है कि नेस्ट के कुछ एग्जाम्स आपके IIT JEE में डायरेक्ट पूछ लिए जाएं या एडवांस में डायरेक्ट पूछ लिए जाएं, या फिर आपके जो एडवांस या मेंस के क्वेश्चंस हैं वो कल को नेस्ट में पूछ लिए जाएं। ये क्रॉस जो एक तरह से इंपोर्ट चलता है क्वेश्चंस का, ये तो कुछ भी हो सकता है ना, वी आर नॉट श्योर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। अब आप देखो इस रिएक्शन को आपने कहाँ देखा था, है ना। अगर आपको याद हो, इससे मिलती जुलती एक सिमिलर रिएक्शन हमने कहाँ देखी थी? NCERT में देखी थी, जब हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता था जिसे हम क्यूमीन बोलते थे। इसका ऑक्सीडेशन कराते थे तो क्यूमीन परऑक्साइड बनाता था क्यूमीन परऑक्साइड, बताओ, बनाता था ना। और उसके बाद फिर जब इसका क्या करते थे, H+H2O, तो में दो कंपाउंड मिलते थे, एक तो अल्कोहल मतलब फिनॉल, और दूसरा ये वाला जो बेसिकली होता था ये पूरा अलग हो जाता था और ये क्या बना लेता था, कीटोन, जिसे हम बोलते थे ये। अब यहाँ में और यहाँ में क्या डिफरेंस है? बस एक ये जो ग्रुप है मिथाइल, इसको हटा के आइसोप्रोपाइल ही तो लगा रखा है। तो एक होगा फिनॉल और एक क्या होगा, आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन। खत्म भाई। तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन बनेगा एक और एक फिनॉल बनेगा, खेल खत्म। ले वो कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब आते हैं फिजिकल वाले सेक्शन पे। द रेशियो ऑफ 3p to 1s ट्रांजिशन एनर्जी इन हीलियम प्लस टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोजेस्ट टू। यहां पर एक बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे 3p से 1s है, ये किस तरह का ट्रांजिशन है? हमने तो ऐसे देखा था 3 शेल से 1 शेल पे जा रहा है, NS goes to 3 से NS goes to 1 पे जा रहा है। ये P और S का क्या लॉजिक है और अब कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। क्या लॉजिक ये है कि बेटा हीलियम प्लस होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम होगा तो भी 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन n, L पे डिपेंड ही नहीं करती। इसीलिए 2s और 2p की एनर्जी बराबर, 3s 3p 3d की एनर्जी बराबर, ऐसे ही 4s 4p 4d 4f की एनर्जी बराबर फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मैंने बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये 3 और 1 का ही रोल है, p और s का कोई रोल ही नहीं है। p एंड s हैज नो रोल। तो आपको सीधा सीधा बस n is equals to 3 से n is equals to 1 के ट्रांजिशन को ही बताना था। अब क्या है, हीलियम प्लस के लिए माइनस का 13.6
क्या बताओ, माइनस का 13.6, 1/n फाइनल स्क्वायर, फाइनल कौन सा है 1, 1 में तो जा रहा है ना, कहाँ से जा रहा है -1/9, और ये क्या हो जाएगा बाहर, हीलियम है तो हाइड्रोजन हीलियम 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया माइनस का 13.6, कितना आ गया बेटा 9 - 1 8/9 × 4, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन का निकालोगे बेटा, वो कितना आएगा माइनस का 13.6, 1/1 -1/9 और यहाँ पर 1, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 13.6, कितना आ जाएगा 8/9, 8/9। किसका रेशियो निकालना है, हीलियम टू हाइड्रोजन निकालना है, यानी कि EHE to EH का रेशियो निकालना है, -13.6, 8/9 × 4 डिवाइडेड बाय -13.6, 8/9 × 1, ये खत्म, माइनस से माइनस खत्म, रेशियो कितना आ गया, E हीलियम इज 4, या एक तरह से अगर ऐसे देखा जाए, E हीलियम रेशियो E हाइड्रोजन इज 4:1, यानी कि 4 इज द करेक्ट आंसर। मोर प्रॉपरली दे कुड हैव मेंशन्ड इट इन रेशियो, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था IIT जैम में, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। ये एग्जाम दिया जाता है बेसिकली BSc के फाइनल ईयर में दे सकते हो पहली बार, और उसके बाद इनफाइनाइट अटेम्प्ट दे सकते हो। इससे आपको मौका मिलता है IITs, IISc, आइजर्स, नाइजर्स, NITs जैसे टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट से मास्टर्स करने का, या फिर MS PhD इंटीग्रेटेड, या फिर MSc PhD डुअल डिग्री कोर्स करने का, ठीक है। तो मैंने यही एग्जाम क्वालिफाई किया था बेसिकली अपने बैचलर्स के बाद, जिसके बाद मुझे मौका मिला IIT जोधपुर से MSc करने का, एंड द एक्सपीरियंस वाज फेबुलस इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड स्किल development, right? So you can also try the previous year questions for this particular exam. Good one. Highest possible energy of a photon in the emission spectrum of hydrogen. Highest possible energy कितनी हो सकती है एक फोटोन की, जब आप एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करोगे कितनी हो सकती है, ग्राउंड स्टेट से इन्फिनाइट कितनी होती है, +13.6 eV, क्योंकि फोटोन अब तुम्हें इजेक्ट करना है तो एनर्जी तो तुम दे सकते हो ना। अब एमिशन है, ध्यान से देखना, एमिशन स्पेक्ट्रम है तो जो हाईएस्ट एनर्जी कितनी होगी बताओ। अब एमिशन है, देखो एब्जॉर्प्शन में एनर्जी पॉजिटिव होती है और एमिशन में एनर्जी नेगेटिव होती है, तो जो हाईएस्ट एनर्जी हो सकती है वो हो सकती है ट्रांजिशन इनफाइनाइट से n = 1, और इसकी एनर्जी कितनी आती है 13.6। क्लियर, चलो आगे, अब आ जाओ। ये नेक्स्ट 2024 कहाँ से आ गया ऊपर है, तो ये नेक्स्ट का क्वेश्चन इसीलिए आया है नेक्स्ट 2024, बट ये ऊपर चला गया। आजा बेटा, आजा 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 आजा। नेक्स्ट 2024 बहुत ही अलग क्वेश्चन था, मतलब अच्छा क्वेश्चन था। कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दैट आर फाउंड बाय साइडवाइज और लेटरल ओवरलैप ऑफ एडजेसेंट 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इन कॉन्जुगेट एलिफेटिक चेन। क्या बताना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली इनमें नोड्स गिनने हैं, नोड के नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी या फिर हाई एनर्जी, ठीक है। जीरो नोड, नोड कब, जब प्लस के सामने माइनस, माइनस के सामने प्लस हो। एक नोड और यहां पर 2 नोड, यहां पर 3 नोड, तो हाईएस्ट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर इसमें 3 एंटी बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसमें 2 एंटी बॉन्ड्स, इसमें 1 एंटी बॉन्ड्स, इसमें 0 एंटी बॉन्ड। जितने एंटी बॉन्ड ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछा है, तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, स्टेबिलिटी में मत लगा देना भाई, एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। हाईएस्ट एनर्जी उसकी होगी जिसमें सबसे ज्यादा एंटी बॉन्ड्स बन रहे हैं, वो है 3rd, ठीक है। तो ये गलत हो गया। उसके बाद आता है 4th, क्योंकि 2 बन रहे हैं, उसके बाद आता है 2nd, फिर आता है 1st। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, C। उसके बाद आता है इट इज नोन दैट 2s2p मिक्सिंग कॉजेज एनर्जी ऑर्डर स्वैपिंग ऑफ सेंट्रल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन द डायटोमिक मॉलिक्यूल, इन सम डायटोमिक मॉलिक्यूल। हमें पता है N2 C2 B2 जितने भी नाइट्रोजन से पहले वाले सेकंड पीरियड के आते हैं, BNCN, है ना, इन सब में क्या होता है, sp मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से ऑर्बिटल्स की एनर्जी स्वैप हो जाती है। कौन से 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी स्वैप होती है, चलो जल्दी बता दो। हमें लगता था पहले कि O2 और F2 तो नॉर्मल है, ये N2 और C2 B2 खराब है, बट एक्चुअल में पता चला
कि नॉर्मल तो N2B2C2 थे, वो O2 और F2 गड़बड़ थे, ठीक है। तो एक्चुअल में बेसिकली इट इज नोन एज 2s2p मिक्सिंग, जिसमें क्या होता है, हमारे जो सिग्मा 2pz है और जो पाई 2px 2py है वो आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं। तो सिग्मा 2p और पाई 2p आपस में इंटरचेंज करते हैं। z क्यों नहीं दिया, xy क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये सब्जेक्टेड है आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, कमेंट में बताना जरूर, अभी याद आ गया तो मैंने सोचा बता दूं। चलो बताओ जरा कि ये जो हम सिग्मा 2pz लिखते हैं हमेशा और पाई 2px 2py लिखते हैं, है ना, इसमें कभी तुमने सोचा है कि सिग्मा 2px क्यों नहीं आता और सिग्मा 2pz क्यों नहीं, सिग्मा 2py क्यों नहीं आता, वाई नॉट, बताना, ठीक है। ये भी नेक्स्ट का क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार में तो ये बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था, ठीक है। रियली अ नाइस क्वेश्चन, एवरी स्टूडेंट शुड ट्राई दिस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लड़ाई छोड़ो और एक दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सीखो, ठीक है। तो द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ हीलियम एटम EHE can be expressed in terms of ground state energy of hydrogen atom EH and the electron interaction energy EEE in helium atom। अब की बार ध्यान देना, EHE प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल हीलियम एटम की बात कर रहा है कि अगर मान लो हीलियम एटम की हम बोर्स वाले फॉर्मूले से एनर्जी बताने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से बताई जाएगी कि बोर्स वाले फॉर्मूले से जो EHE की एनर्जी आएगी वो प्लस एक इंटरेक्शन एनर्जी जो बोर वाले ने मिस कर दी थी, जो बोर ने मिस कर दी थी, है ना। In the helium atom, if EEE is equals to x time to the magnitude of EH, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो रिपल्शन की वजह से आती है वो x टाइम्स है EH के मैग्नीट्यूड के, तो हीलियम की एक्चुअल एनर्जी किस इंपेरिकल फॉर्मूला से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। अब ध्यान से देखो, जो हाइड्रोजन की एनर्जी होती थी, लेट्स से आपको पता है ना उसका बड़ा सा फॉर्मूला, पूरा एकदम K Q1 Q2 और वो जो उससे आता था बड़ा लंबा सा फॉर्मूला, नहीं याद है मत करो, वो याद है 13.6 z²/n², उससे हो जाएगा काम। एक टर्म आती है कांस्टेंट K और बाकी प्रोपोर्शनैलिटी n²/z² होती है, z²/n² होती है, ये थी। तो हाइड्रोजन के लिए कितनी आएगी देखो, यानी कि K, है ना। हीलियम के लिए जब तुम निकालोगे, हीलियम के लिए तो याद रखना के तो वही सेम चीज हो गई ना सब में, 13.6 आती थी जिसकी वैल्यू, z² की जगह 4 आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा और n² फिर से 1 क्योंकि ग्राउंड स्टेट पूछ रहा है, तो यानी कि 4 टाइम्स ऑफ K। लेकिन एक चीज यहां पर मिस जो हर बच्चा कर गया वो ये थी कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक न्यूक्लियस से इंटरेक्शन करेगा तो इतनी एनर्जी होगी। हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट करेंगे तो अट्रैक्टिव एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी 2 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये कैच था इस क्वेश्चन में। तो बेसिकली जो टोटल ये क्या है, जो टोटल है 8K हो जाएगी एनर्जी, ये क्या है, बाई 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम, बाई 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन। तो टोटल जो अट्रैक्टिव एनर्जी हीलियम की वो 8K होगी। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, इसमें से हमने रिपल्सिव एनर्जी तो माइनस ही नहीं करी। और रिपल्सिव एनर्जी क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, अब उनके बीच में रिपल्सिव एनर्जी भी होगी, तो ओवरऑल एनर्जी एक्चुअल में एक हीलियम की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, उसकी 8K माइनस ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, और वो कितनी है, x टाइम्स ऑफ EH। ले आ गया, और 8K, और ये क्या था, K क्या था, EH, यहां पे रख दो, 8 EH माइनस x टाइम्स ऑफ EH। अगर पसंद आया हो ये क्वेश्चन तो लाइक जरूर करना वीडियो को और कमेंट में बताना हाउ वाज द एक्सपीरियंस टू सी दैट हाउ अ प्रोफेसर ऑफ नाइजर कैन ट्विस्ट द क्वेश्चन जस्ट लाइक दैट यूजिंग द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स, राइट। So hats off to that professor whosoever have created this question, really. ठीक है, now choose the correct statement. The lithium plus 2
In lithium plus 2, the energy of an atom at any level depends upon n principal quantum number and as well as azimuthal quantum number. Lithium plus 2 is a uni electronic species. Energy सिर्फ n पे डिपेंड करेगी, l पे डिपेंड नहीं करेगी, तो ये इनकरेक्ट हो गया. The reason why Bohr atom is applicable only on for one electron species is because of the neglection of electron repulsion. Yes, true. इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ही तो नहीं लिया था उसने, इसीलिए तो सिर्फ वो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे वैलिड है. In lithium plus 2, the energy of an atom at any level depends only on principal quantum. Now we are talking. So this is the correct statement. The further splitting of spectral lines of hydrogen emission spectra into fine doublets is because of the intrinsic property of the electronic spin. Yeah, that is extremely nice statement and that is 100% true. ये जो basically splitting होती है ना spectral lines में, जो fine doublets मिलते हैं हमें basically, जैसे कैसे समझाऊं, जैसे सोडियम डी लैंप में हमें 2 लाइंस मिलती हैं 5896 5893, ऐसे ही जो हमें फाइन डबलेट्स मिलते हैं ना स्पेक्ट्रा में, वो स्पिन की वजह से मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन की वजह से. एक इलेक्ट्रॉन की 2 एनर्जीज होती हैं, एक प्लस हाफ की वजह से, एक माइनस हाफ की वजह से, है ना. अब तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया बेटा? ये भी करेक्ट है. फर्स्ट बेसिकली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका. अब ग्राफ बिटवीन log k एंड 1/t, काइनेटिक्स आ गई भाई, काइनेटिक्स आ गई. ग्राफ बिटवीन log k एंड 1/t, k इज द रेट कांस्टेंट इन सेकंड इनवर्स. चलो सेकंड इनवर्स आ गया k, तो ऑर्डर बताओ. ऑर्डर 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 अरे नहीं सन्नी देओल नहीं बनना है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है. T इज द टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है एज शोन इन फिगर. इफ OX इज 5 एंड द स्लोप इज -half/2.303, मतलब हाफ बाई 2.303, देन EA इज. ग्राफ कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर है. फर्स्ट ऑर्डर की ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो एक्टिवेशन एनर्जी की बात करती है, वो कौन सी है बेटा? ए के. देखो log k, तो log k वाली इक्वेशन कौन सी है? वो है ना log k इज इक्वल्स टू log a माइनस का EA बाई 2.303 R 1/t. और ज्यादा टेंशन मत लेना अगर ये भूल गए हो इक्वेशन, वो तो याद है ना, आर्रीनियस इक्वेशन. कौन सी आर्रीनियस इक्वेशन कौन सी थी? k इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी. उसका जब लॉग लोगे तो यही आएगा, ठीक है. नेचुरल लॉग नहीं लेना है यहाँ पर, 10 बेस पे लॉग लेना है. एलओजी पूरा लिखा जाए तो 10 बेस पे होता है, ln लिखा जाए तो नेचुरल लॉग होता है, ई बेस पे होता है, ठीक है. तो पहले ई बेस पे लॉग ले लेना, और फिर जब वो ई की पावर उतार लोगे और ln ई से 1 हो जाएगा, ई बेस पे ई ln 1 हो जाएगा, तब उसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर, नेचुरल लॉग से 10 बेस पे कन्वर्ट कर लेना बाय मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन 2.303. तो लास्ट वाला 2.303 डिवाइड में घुस जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी. अब ये क्या है? y इज इक्वल्स टू c माइनस mx. m क्या है? स्लोप. कैसा है? नेगेटिव. तो स्लोप उल्टा जाएगा, देखो जा रहा है ना. स्लोप कैसा है? नेगेटिव. इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? EA बाई क्या है? माइनस EA बाई 2.303 R. और वो कितना दिया है? बट गिवन कितना दिया है बेटा? स्लोप बताओ. -1/2.303. और तुम्हारा क्या है? -EA बाई 2.303 R. ये कटा, माइनस से माइनस कटा, EA कितना आ गया? R. R की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? देखो R की कोई वैल्यू दी है? हाँ दी है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल. तो ये कितना आ गया? 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल से तो कट जाएगा, 2 कैलोरी आ जाएगा, ठीक है. तो आंसर आ जाएगा 2 कैलोरी, राइट. चलो, गिवन बिलो इज एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन ए से बी. द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द रिएक्शन इज. हालांकि एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी बराबर नहीं है तो इक्विलिब्रियम कभी भी बराबर नहीं होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का. देयर विल बी ऑलवेज अ डिफरेंस, कि कहीं फॉरवर्ड ज़्यादा होगा तो एरर छोटा या बड़ा हो सकता है, इक्विलिब्रियम का एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा. एक माइन्यूट डिटेल जिसका यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी नहीं भी है. चलो भाई देखो, द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द रिएक्शन इज गिवन एज दिस. पहले मुझे ये बताओ, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? चलो इतना बताओ, कमेंट में बताना. एक्सो या एंडो? क्वेश्चन नंबर लिखा है ना, तो जिसमें भी बोल रहा हूँ कमेंट में बताना, क्वेश्चन नंबर लिख के बताना. मच्छी बाजार मत बना देना कमेंट बॉक्स को, ठीक है. तो एक्सो या एंडो? अब देखो यहाँ पर हमें पता है जब भी फाइनल प्रोडक्ट की एनर्जी हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होती है तो जो ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा है ना, हाई एनर्जी उधर ऊपर की तरफ है ना बेटा,
ये एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये रिएक्शन की प्रोग्रेस होती है, ठीक है। हाई एनर्जी पे है, तो जब भी हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होती है, इसका मतलब उसने एनर्जी कंज्यूम करी है, कंज्यूम करी तो हमने एनर्जी दी है, दी कहाँ है, एंडोथर्मिक में, तो याद रखना ये वाली एंडोथर्मिक है, एक्सो नहीं है, ठीक है। अब जो एक्स होता है वो क्या होता है बेटा, डेल्टा एच, जो कि आप पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फाइनल पी की एनर्जी इनिशियल से जब माइनस करोगे नेट पॉजिटिव आएगा, तो एक्स क्या है, डेल्टा एच है। वाई क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड रिएक्शन की, ई ए फॉरवर्ड, यहां से जब यहां जाना था तो, ठीक है। उसके बाद z क्या है, जब वापस आना था, सपोज यहां से उल्टा जाना है, तब यहां से जो यहाँ की एनर्जी का गैप होगा, ये वाला बेसिकली, ये वाला जो यहां से यहां तक की एनर्जी का गैप है, वो क्या है, ई ए बैकवर्ड। तो ई ए बैकवर्ड ही पूछा है उसने, ई बी बैकवर्ड जो है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड जो है वो किसके बराबर है, z के बराबर है, राइट। तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा चलो क्वेश्चन बताना कमेंट बॉक्स में, डिफरेंस बिटवीन, बिना गूगल करे यार, ईमानदारी से भाई, शर्म करना, अगर गूगल की जरूरत पड़ रही है, एक हफ्ते बाद एग्जाम हो सकता है तुम्हारा, तो तुम क्या कर रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अगर ना मिले जवाब तब गूगल करना, पहले ईमानदारी से, ठीक है। गूगल करने से पहले किताबें देखा करो, ठीक है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू पी, द टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट K was found to follow the equation log K is equals to 2000 upon T plus 6.0, यानी कि 6.0। और एक्चुअल में कौन सी इक्वेशन होती है, एक्चुअल में कौन सी इक्वेशन होती है जो रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर डिपेंडेंसी बताती है, बताओ। log K इज इक्वल्स टू माइनस का EA बाई 2.303 R 1/T, ये होती है ना, और log A भी तो होता है, log A माइनस का EA बाई 2.303 1/T। अरे आर्रीनियस से ही तो आई है ये, ध्यान से देखा जाए तो आर्रीनियस से ही तो आई है ना, समझ रहे हो। तो अब देखो log के तो log के हो गया, कंपेयर कर लो ना, फिजिक्स में इस तरह के पता नहीं कितने क्वेश्चन तुमने करे होंगे, है ना। साउंड वाले चैप्टर में मुझे याद है अभी भी हम करते थे, वेव की इक्वेशन दी होती थी, हम फिर मैच करते थे उसको, तो log A को इससे मैच करो, तो यानी कि इंटरसेप्ट जो हो गया, जो तुम्हारा इंटरसेप्ट हुआ वही A, log A कितना है, log A कितना है 6, log A कितना है 6, तो A कितना हुआ 10 की पावर 6, यही तो हुआ। log A कितना है 10 की पावर 6, जब log इधर जाता है नेचुरल 10 बेस पे, तो इधर 10 की पावर में चढ़ जाता है ना ये, तो क्या आ गया 10 की 6 आएगा ना, तो 1 इंटू 10 की पावर 6 सेकेंड इनवर्स कैसे आया, कौन बताएगा सेकेंड इनवर्स कैसे आया। क्योंकि हमें पता है जब हम आर्रीनियस इक्वेशन लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो जो यूनिट होती है इनकी सेम आती है, ठीक है। अब यहाँ देखो उसने बोला है आपको कि जो माइनस EA बाई 2.303 की पूरी वैल्यू है, R भी आएगा यहाँ पर 1/T, इसकी जो पूरी वैल्यू है वो कितनी है आपकी, किसके बराबर आ रही है 2000/T, 1/T, ये किसके आ रहा है 2000/T के, तो T से T कट गया, ये कितना आया, माइनस इधर चला गया 2000 इंटू 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लिया, तो आंसर भी जूल में आएगा। जब इसे कर लोगे तो आंसर कितना आएगा बताओ, 38.3, कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाओ, फटाफट कर लेते हैं कैलकुलेट, 2 इंटू 2.303 इंटू 8 लगभग हाँ वही आएगा 38.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। मतलब किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले जूल में आएगा सम थाउजेंड्स में, तो वो उसको किलो जूल में करोगे तो ये आएगा। और ये कितना था 1 इंटू 10 की पावर 6 सेकेंड इनवर्स, तो डी आंसर आ गया आपका क्या आंसर आ गया, डी, ठीक है। अब देखो, इफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन आर्रीनियस इक्वेशन, जानबूझ के डाले जा रहे हैं बार बार आर्रीनियस इक्वेशन के क्वेश्चंस, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट रट जाए, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स का, ट्रस्ट मी। If exponential factor in Arrhenius equation is 1.6 into 10 raised to the power minus 12 second inverse, the value of rate constant at very high या extremely high temperature will be closest to, हमें पता है K होता है A raised to the power minus EA by RT if T is very high,
तो हम क्या मान सकते हैं उसको, इन्फिनिटी, क्योंकि वेरी हाई की क्या डेफिनेशन होती है कि वो इन्फिनिटी जा रहा है, टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब आर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो माइनस का ई ए बाई आर टी टेंड्स टू ज़ीरो, टेंड्स टू ज़ीरो, तो के, तो यानी कि ई की पावर माइनस ए बाई आर टी टेंड्स टू 1, यानी कि के इज इक्वल्स टू ए, यानी कि जो a की वैल्यू वो एक की वैल्यू होगी। तो उसने बोला प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर अगर कितना है 1.6 इंटू 10⁻12 सेकेंड इनवर्स, तो k कितना होगा, जब टेम्परेचर इनफाइनाइट जाएगा तो k भी इतना ही होगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन दैट रिलेट्स द केमिकल पोटेंशियल टू द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज। कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो केमिकल पोटेंशियल को कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर से रिलेट करती है? अगर तुम्हें नहीं भी आता है तो भी तुम यहाँ पर एलिमिनेशन लगा सकते हो। डिबाई हगेल-ऑन्सागर रिलेट करती है लैम्डा एम सी को अंडर रूट सी से। जूल थॉमसन रिलेट करती है चेंज इन टेम्परेचर को विद चेंज इन प्रेशर। गिब्स डूहेम इक्वेशन और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हमें पता है डेल जी को रिलेट करती है डेल एच एंड डेल एस के साथ। बची कौन सी बेटा, गिब्स डूहेम। तो इसका मतलब कि केमिकल पोटेंशियल को कंपोजिशन के साथ जो रिलेट करती है इक्वेशन कौन सी है, वो गिब्स डूहेम है। तो यानी कि दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है जाके गिब्स डूहेम इक्वेशन को रिवाइज कर लेना अगर पढ़ी है तो, और नहीं पढ़ी है तो जाके देखो तो सही एक बार 2-3 मिनट की कोई यूट्यूब से वीडियो उठा के कि क्या होती है गिब्स डूहेम इक्वेशन, उसका काम क्या होता है। और ये सारी बाकी नहीं पता तो पता है तो रिवाइज करो। द करेक्ट वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ अ हाफ सेल इन द फॉलोइंग ग्राफ ई वर्सेस लॉग कंसेंट्रेशन। कितना सही ग्राफ है, हवा भी नहीं आ रही होगी किसी को, बट यहाँ पर तुम एक बार नर्स्ट इक्वेशन लगा के देखो, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन। क्यों, क्योंकि एक इकलौती यही तो इक्वेशन पढ़ी है जो लॉग की कंसेंट्रेशन और ई को रिलेट करती है। तो ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग कंसेंट्रेशन। अंदर क्या होती है, कंसेंट्रेशन ही तो होती है ना ओवरऑल। तो एक तरह से देखो y इज इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स, तो m क्या हो गया, माइनस का आर टी बाई एन एफ, स्लोप हो गया। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा अगर, तो आर टी बाई एन एफ क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, है ना। और c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा ई नॉट। तो यानी कि ये क्या है, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट जहाँ पे भी होगा इस ग्राफ का, जहाँ पे भी आपका x0 होगा, y पे कट कर रहा होगा, वो आपका ई नॉट होगा। कहाँ कट कर रहा है, b पे, तो इतनी वैल्यू कितनी है, b प्राइम, तो ये क्या हो गया, ई नॉट खत्म। This is how the knowledge of overall mathematics is applied. If the concentration C is increased to 4 times to its original value C, the change in the molar conductivity for strong electrolyte, B is the Coleridge constant. Coleridge constant का नाम ले लिया और उसने आपको concentration और molar conductivity दी है, तो आप lambda mc is equals to lambda m infinity माइनस का b रूट c लगा लो, C1, और ऐसे यहाँ पर लगा लो lambda mc 1 C1 C2 लैम्डा एम इन्फिनिटी तो सेम ही रहेगा, बस कंसेंट्रेशन अलग अलग आ जाएंगी। C2 इनको माइनस कर दो, क्या बताना है, चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी। तो लैम्डा एम C2 माइनस लैम्डा एम C1 कर लो, यही तो चेंज होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस का b रूट C2 माइनस लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस का b रूट C1। कोलराज कांस्टेंट तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप क्या नहीं बदल देते, जब तक आप सॉल्यूशन नहीं बदल देते अपना। ठीक है, समझ गए, ये कटा, ये डेल्टा लैम्डा एम आ गया जो हमें निकालना है। आपको क्या मिला, माइनस का b, ये प्लस हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, ये आपने माइनस करा है ना, तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका b रूट C1 माइनस क्या हो जाएगा, b रूट C2, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही होगा। तो माइनस प्लस की टेंशन मत लेना, b कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट C1 माइनस अंडर रूट C2, यही तो आएगा कि नहीं। तो अब आपने क्या किया है, गिवन C is increased 4 times to its original value, C1 जो है वो C है, C2 क्या है, 4 times of C है, 4 गुना बढ़ा दिया है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अंडर रूट C1 माइनस यहाँ पे क्या करोगे 4C1,
तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बी रूट सी माइनस 2b रूट सी, इसे सी मान लो ना, एक ही बात है। तो माइनस का बी रूट सी आएगा, माइनस का बी रूट सी आएगा। लेकिन अगर मैं मान लूँ कि उल्टा माइनस करेंगे, क्योंकि चेंज तो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आप देखो ना, यहाँ पर उल्टा रिलेशन है एक्चुअली में, हमने फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, फाइनल। अब आप क्या कर रहे हो, आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे लैम्डा तो कम हो जाएगा ना, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल निकालोगे लैम्डा का तो नेगेटिव ही आएगी वैल्यू, तो उसको लेके घबराना थोड़ी है। ये नेगेटिव तो यहाँ पर मोड ले लो इसका, तो अंडर रूट वैल्यू से मतलब है ना चेंज में, तो बी रूट सी की वैल्यू है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी रूट सी, यानी कि बी सी की पावर हाफ। यही तो आएगा या कुछ और आएगा, यही आएगा ना, ठीक है चलो। फॉर अ लिक्विड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज 1.435 किलो कैलोरी पर मोल। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यानी कि डेल्टा एच फ्यूजन दे रखा है 1.35 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, एंड द मोलर एंट्रोपी चेंज इज 5.26 कैलोरी पर मोल, यानी कि डेल्टा एस दे रखा है 5.26 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इन सेल्सियस इज, ओ yeah, तो मेल्टिंग पॉइंट बताना है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि टी बताना है जब फ्यूजन होगा। आपको पता है डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, ओ सॉरी डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी प्रोसेस फिजिकल चेंज के दौरान, डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय टी। ये टी किस में होता है, केल्विन में, ये टी किस में होता है, केल्विन में। तो अब ध्यान देना, यहाँ से ये कितना आएगा, टी केल्विन में कितना आएगा बेटा, डेल्टा एच फ्यूजन इंटू डेल्टा एस। तो डेल्टा एच फ्यूजन कितना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, ये ऊपर जाएगा, डेल्टा नीचे आएगा ना, डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाई डेल्टा एस, ठीक है। वो लिखा ऐसे है, वो अजीब लग रहा है, बेसिकली ऐसा है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच एफ डिवाइडेड बाई टी। तो टी इधर जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा एच फ्यूजन है 1.435 किलो कैलोरी है ये, और वो कैलोरी है तो इसे 10 की पावर 3 करो, ये सब चीज़ें तो ध्यान देनी होती हैं। 5.26, ठीक है। बाकी यूनिट देखो, मोल से अब सारी यूनिट कट जाएगी, कैलोरी मोल और सब कट जाएगा, यहाँ से केल्विन बच जाएगी इन्वर्स में, और वो केल्विन इधर चला जाएगा, तो मतलब बेसिकली आपको केल्विन ही मिलेगा, जब ऊपर चला जाएगा तो केल्विन हो जाएगा ना। तो आपको 5.26 बस ये करना है, क्या आंसर आएगा करके देख लो, क्योंकि जो आंसर आएगा वो पहले केल्विन में आएगा, आपको डिग्री में बताना है। 1.435 डिवाइडेड बाय 5.26, तो कितना आ रहा है, इंटू 10 की पावर 3 करके 272.8, ये केल्विन में आ रहा है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 273 केल्विन, 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर कितना आएगा बेटा, 0। आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे, चलो आगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, ओ आइए इनऑर्गेनिक साहब प्लीज वेलकम। Incorrect statement among the following: sigma bond is cylindrically symmetrical and has no molecular node. Correct. Incorrect बताना है। sigma bond is cylindrically symmetrical and has one molecular node. Incorrect. आगे भी बढ़ सकते हो इतना करने के बाद, लेकिन पूरा पढ़ लो। Bond order of helium, H2 2+ is less than H2. H2 का एमो डायग्राम बनाओ, 1s 1s तो कंबाइन करते हैं बस, सिग्मा बनेगा, सिग्मा स्टार बनेगा, ठीक है। ये हो गया H2, और H2 2+ में क्या होता है, H2 2- में क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो जाएंगे। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है, 0, क्योंकि नेट बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, इफेक्ट कैंसिल। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, H2 2+ का। अच्छा H2 2+ बनाना है यहाँ पे, तो H2 2+ का क्या हुआ, हो H2 2+ भी तो यही होगा बेटा, H2 2+ तो 0 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर तो 0 ही रहेगा उसका H2 2+ में, ये तो खत्म। तो बात तो वही है, लेस देन है, तो ये ठीक है स्टेटमेंट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ H2 2-, ओके, H2 2-, ये आ गया अब H2 2-, ठीक है, ये H2 2- है। इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लेस देन H2 है। अब देखो सपोज ये इन्फानाइट है, ये इन्फानाइट एनर्जी लेवल है, मतलब 0 एनर्जी, यानी कि इन्फानाइट शेल। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब H2 की बात करेंगे तो यहाँ से ऊपर तक का डिफरेंस अगर मैं मान के चलूँ, मान लो ये इन्फानाइट है, 0 एनर्जी, ठीक है,
तो यहाँ पर जो ये डेल्टा आई ई है वो ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो H22 माइनस की एनर्जी कम हुई आयोनाइजेशन, तो ये भी ठीक है। तो ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस वन, बी। तो एक्चुअल में बी आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट इन बी एन माइनस। बोरोन नाइट्राइड बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एमोडायग्राम है इसका। बोरोन में भी sp मिक्सिंग होती है, नाइट्रोजन में भी sp मिक्सिंग होती है। तो जब आपके दोनों इंडिविजुअल एटम्स ऑफ डायटोमिक स्पीशीज में sp मिक्सिंग होती है तो आप सिंपल एक बात फॉलो करते हो, क्या, थोड़ा सा साफ बना लेता हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। क्या, 8 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल कर दो, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, 8 इलेक्ट्रॉन्स 1s और 2s के खत्म कर दो। जब देखो CO-NO, सिर्फ ये 2 केस ऐसे हैं फिलहाल तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे लेवल के हिसाब से CO और NO ऐसे केस हैं जहां 1s 2s कैंसिल मत करना, पूरा बनाना। लेकिन और अगर किसी को CO और NO के एमोडायग्राम में दिक्कत है तो बेटा जाके 1 शॉट में देख लो, मैंने बताया हुआ है, ठीक है, इनऑर्गेनिक के सेक्शन में कैसे बनता है। BN और CN जब दोनों अलग अलग भी हो या सेम भी हो, दोनों में sp मिक्सिंग हो रही है, तो आपको सिर्फ 1s 2s के 8 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल करने हैं। 1s एंड 2s के जो 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1s सिग्मा स्टार, 2s सिग्मा स्टार, इसके जो टोटल 4 ऑर्बिटल्स 8 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर दो, इनका नेट इफेक्ट 0 हो जाता है। बचे आपके p ऑर्बिटल के पाई नीचे सिग्मा ऊपर, क्योंकि sp मिक्सिंग है, sp मिक्सिंग है तो क्या होगा, पाई नीचे आ जाएंगे, सिग्मा ऊपर चला जाएगा, फिर पाई स्टार आ जाएंगे और फिर सिग्मा स्टार आ जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना। अब भरो बाकी के इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन्स में से 8 भर दिए, 8 में से 13 में से 8 गए, 5 बचे, भर दो, 1 2 3 4 5। तो आधा भरा हुआ ऑर्बिटल या एक भी इलेक्ट्रॉन की जगह रखने वाला कोई ऑर्बिटल ना तो पूरी तरह से होमो होता है ना पूरी तरह से सोमो होता है, इसलिए वो दोनों होता है। खाली वाले पार्ट को देखोगे तो सोमो यानी कि सिंगली ऑक्यूपाइड, सॉरी लूमो। खाली वाले पार्ट को देखोगे तो लूमो हो जाएगा यानी कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी वही है। और अगर भरे हुए पार्ट को देखोगे तो हाईएस्ट एनर्जी का ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल भी वही है, तो होमो भी वही, लूमो भी वही, तो क्या हो जाता है, सोमो। तो बेसिकली सोमो कौन है, सिग्मा 2pz। और अगर वही वो कह देता हाइपोथेटिकल INA इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हमने एक्स एक्सिस को माना है, और तब वो सिग्मा 2pz देता तो गलत हो जाता, क्योंकि अब की बार सिग्मा बॉन्ड वो बनाएगा जो INA पे है, यानी कि जो भी एक्सिस INA की है वही सिग्मा बनाती है। ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने अभी से बहुत पहले पूछा था तुमसे कि बताओ 2pz ही क्यों लेते हैं वहां पर, ठीक है। 2px इज इक्वल टू 2p, कौन सा है भाई, ये खत्म करो, आगे बढ़ो। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होमो लूमो दोनों बताने होते हैं, तो उसका तो एक ही है ना, सोमो तो एक ही बताया। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विद द टेम्परेचर इन केल्विन फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सब बता देता हूं, देखो ये ग्राफ यहां से यहां तक एंटी फेरो का होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पैरामैग्नेटिक का। पढ़ा है फिजिक्स में, ये यहां से यहां तक का जो होता है ये होता है फेरोमैग्नेटिक का, और यहां से यहां तक हो जाता है फिर से पैरामैग्नेटिक का। सेम ही तो है एक तरीके से, ये वाला पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। अब देखो अगर आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ही 0 है तो टेम्परेचर के साथ क्या ही फर्क पड़ेगा, वो तो कांस्टेंट ही रह जाएगी ना। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ये होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर के साथ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट लेवल भी ऐसे कह सकता है, 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देगा, उनमें से पूछ लेगा कि ये वाला ग्राफ किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। चलो जो डायमैग्नेटिक होगा उसका होगा। द हाईएस्ट डेलो अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, डेलो के लिए सबसे पहले बोनस। अब यहां तक टिके हो तो बोनस लेके जाओ। डेलो के फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये प्रायोरिटी वाइज देखने होते हैं, प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, वो सबसे ज्यादा डेलो, यानी कि उसकी स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या देखते हैं, सेकेंड फैक्टर पीरियड नंबर ऑफ मेटल, यानी कि हाई एन हाई स्प्लिटिंग। तो अगर कोई रोडियम, रुथेनियम या फिर ऑस्मियम का फिरूओज
आयरन, रुथीनियम या फिर ऑस्मियम का कोई कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो स्प्लिटिंग कैसे बताओगे? ऑस्मियम की सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे नीचे आता है, ठीक है, 5D का है, फिर 4D वाला, फिर 3D वाला, हाई डेलो। डेलो स्प्लिटिंग के बराबर होता है इसी को, ठीक है। थर्ड वाला आता है नंबर ऑफ लिगेंड्स, नेचर ऑफ लिगेंड्स, नेचर ऑफ लिगेंड्स। अगर ये सब सेम है ऊपर वाले दो, तो नेचर ऑफ लिगेंड्स देखते हैं। स्ट्रॉन्ग वाला जो लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अगर किसी बच्चे को स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड में दिक्कत आती है कि हमें पता नहीं चलता, तो उसके लिए भी मैंने वन शॉट में एक अच्छे से बताया हुआ है, वो जाके देख लेना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई डेलो, ठीक है। उसके बाद इतना रख लो, इससे आगे तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये 2+ है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ बताई थी उस वन शॉट में कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो और न्यूट्रल लिगेंड दिए हो, तो जो ऑक्सीडेशन, जो ओवरऑल चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स का, वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल मेटल की। और सारे H2O लिगेंड है, लिगेंड सेम है, ठीक है। तो और सारे 3D के हैं, पहली बात मेटल, उल्टा देखो ही मत, वैसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। तो यहाँ पर सबकी, इसकी +2 हो जाएगी आयरन की, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, ये +2, तो +3 वाला हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, दैट इज +3। तो इसका मतलब हाईएस्ट डेलो इसी का होगा, हाईएस्ट डेलो। और मजे की बात, कोबाल्ट +3, ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। The ratio of crystal field stabilization energy of NiH2O6 2+ to that of FeH2O6 2+ is, वाह, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE होती है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेलओ होती है। पहले तो अपने दिमाग में से फंडे जो है कंफ्यूजन दूर करो। एक होती है डेलओ या डेल्टी, जिसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाइडल एंड टेट्राइडल कॉम्प्लेक्सेस रिस्पेक्टिवली। एक होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो होती है CFSE। अल्टीमेट फैक्टर जो स्टेबिलिटी के लिए है वो CFSE होता है, जो हाइड्रेशन एनर्जी या लैटिस एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स की टर्म्स में निकाला जाता है, और वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी बताना है NiH2O6 2+ से FeH2O6 2+ तक का। ये तो बहुत सिंपल है, CFSE बतानी है। तो देखो, अब इसको कैसे बताओगे? देखो, CFSE का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। T2G नीचे होता है, तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 3 की मल्टीप्लाई करते हैं आपकी 0.4 से, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन TEG, वो डिस्टेबलाइजिंग ऑर्बिटल होता है ऑक्टाहेड्रल में, इनटू +0.6, और ये दोनों वीक कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो डेल O रख दो बस यहाँ पर। और उसके बाद आपका जो आएगा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि मीन पेयरिंग एनर्जी तो कोई है नहीं, वीक कॉम्प्लेक्सेस में नहीं होती है ना। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में पेयरिंग एनर्जी नहीं होती, क्योंकि पेयरिंग होती ही नहीं है, तो पेयरिंग एनर्जी कुछ देनी ही नहीं पड़ेगी, तो वो 0 हो जाती है, तो डेलो। अब निकल H2O6 2+ और FeH2O6 2+ के लिए लगाना है। तो मुझे एक बात बताओ, Ni2+ और Fe2+ में ध्यान से देखना, Ni2+ की एनर्जी कितनी होगी? Ni2+ की एनर्जी होगी, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? फी देखो, आयरन होता है D6S2, तो जब 2 चले जाएंगे D6 बचेगा, फी को नहीं, ये D8 हो जाएगा, है ना, D8 हो जाएगा। तो D6 कैसे भरोगे? 1 2 3, पेयरिंग नहीं हो रही है, 4 5 6 7 8, 8 तो भरने ही नहीं, 6 ही भरने हैं, 6 ये भर गए। तो यानी कि क्या हो गया? Eg4 T2G, सॉरी T2G4 Eg2, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे। यहाँ पर 8 हाई स्पिन में कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8, ये क्या हो गया? Eg2 T2G6। अब भरो, यहाँ पे क्या बताना है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का रेशियो बताना है, ठीक है। तो अब देखो, यहां पर ना थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। हालांकि देखो, जो डेलो को गवर्न करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स में अब तुम ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट सब बराबर है, +2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है, दोनों 3D के, 3D का है, ये भी मेटल 3D का है। उसके बाद H2O लिगेंड भी सेम है, नंबर भी सेम है 6 6, तो
डेलो ऑलमोस्ट कंपेरेबल आएगा इनका डेलो ऑलमोस्ट कंपेरेबल आएगा, तो आप बस इनका फ्रैक्शन ले लेना। तो आपको क्या करना है बेसिकली, CFSE दोनों का निकालना है। Fe का निकालोगे अगर कॉम्प्लेक्स का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G कितने हैं बेटा, आयरन में 4, तो 4 इंटू माइनस का 0.4 1.6 प्लस का कितना आ जाएगा 0.6 में Eg के इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 1.2 डेलो कितना आ गया बेटा, माइनस का 0.4 डेलो। और उसके बाद यही जब तुम निकल का निकालोगे, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर स्टेबलाइजिंग वाले ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी कि इसकी ओवरऑल CFSE इसकी ओवरऑल जो CFSE का जो अंदर का मैग्नीट्यूड आएगा वो मोर नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि रिलीज ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 की मल्टीप्लाई जब आप करोगे किससे, 0.4 से, 6 4 जा तो माइनस की 2.4 आएगी, इनफैक्ट हाईएस्ट होती है ये, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगी कितनी 2, ये वही आएगी 1.2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो 0.6 से, ठीक है। तो 1.2 कितनी आ गई ये डेलो, ऑलमोस्ट 1.2 डेलो। रेशियो बताना है निकल रेशियो बताना है निकल टू आयरन वाले कॉम्प्लेक्स का, यानी कि माइनस का 1.2 डेलो से रेशियो बताना है, ऐसे लिख लो, माइनस 0.4 डेलो का, माइनस से माइनस कटा, ये पॉइंट से पॉइंट कटा, 4 3 12, तो 3 डेलो से डेलो कट गया, तो 3 आ गया, 3:1। तो बेसिकली रेशियो क्या आ गया, 3:1, ठीक है, समझ गए। चलो, फॉर एन आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स FeH2 होल 6 2 द CFSE इज माइनस 12,000 सेंटीमीटर इनवर्स। CFSE दी है तो याद रखना वही पूरा वाला फॉर्मूला जो लगा के आती है वो एनर्जी दी है, डेलो नहीं है ये, माइनस का 12,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। द CFSE फॉर FeH2 होल 2 विल बी, अगर तुमने यहाँ लगाया डेल T इज 4/9 डेलो, तो तुम जो है जिंदगी में कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे जब तुम्हारी आंसर की आएगी, क्योंकि मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी कि जो डेल T इज 4/9 डेलो है, ये कब लगाते हैं, ये तब लगाते हैं जब हमारे कॉम्प्लेक्स बराबर हो और हमें डेलो या डेल T दे रखा हो। दे ही नहीं रखा, CFSE दे रखा है, तो पहले तुम्हारा काम क्या है, CFSE रखोगे जो कि दे रखी है किसकी, माइनस 12,000 दे रखी है किस कॉम्प्लेक्स की, Fe+2 की दे रखी है, ठीक है। और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स के लिए दे रखा है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि CFSE का क्वेश्चन देगा तो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स ही देगा, हाई, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स दे दिया उसे मीन पेयरिंग एनर्जी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, है ना। तो ज़्यादातर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देगा वो, सॉरी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देगा। तो ये हो गया Fe+2 वाले की ये दे रखी है, होल 6 वाले की, Fe+2 होल 6 वाले की माइनस 12,000 दे रखी है CFSE। तो आप क्या करोगे, पहले इसकी डेलो निकालोगे। डेलो कैसे निकालोगे, माइनस का 12,000 इज इक्वल्स टू, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी इसकी बताओ, यही तो आलस का काम है इसमें। Fe+2 की आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में निकालनी है। तो T2G नीचे, Eg के 2 ऊपर, D6 है 1 2 3 4 5 6, तो T2G 4 माइनस का यानी कि 0.4 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन्स इंटू कितने से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, नीचे वाले की 0.4 से, प्लस ऊपर कितने 2 इंटू 0.6, ठीक है। और डेलो ये रहा, ठीक है, यहाँ से डेलो आ जाएगा, डेलो कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस का 12,000 डिवाइडेड बाय माइनस का, यहाँ से कितना आएगा 1.6 और 1.2 माइनस का 0.4, कितना आ जाएगा ये, सीधा 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या आ गई, डेलो आ गई, किसकी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की डेलो आई है। अब लगाओगे वो फॉर्मूला, ये किसकी है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो तुम लगाओगे डेलो फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल बी 4/9 ऑफ डेलो ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो कितनी आएगी 30,000 बाई ये 4/9। तो जब ये करोगे बेटा तब तुम्हें पता चलेगा कि 13,333.33 सेंटीमीटर इनवर्स क्या आई है तुम्हारी डेल ओ फॉर टेट्राहेड्रल। अब निकालनी है CFSE इसकी, तो इसकी CFSE फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसका फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर Eg नीचे आ जाएगा, T2G ऊपर आ जाएगा,
T2G ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर से वही D6 ही भरोगे, 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 3 यानी कि दोनों में 3 3। तो अब नीचे की तरफ ये आ गया 0.6 वाला फैक्टर, तो माइनस का 0.6 इंटू 3 प्लस का 0.4 इंटू 3, तो ये 2 आ गए और डेलो आ गया 13,333.33, ठीक है, ये आ गया। अब जब इसे सॉल्व करोगे यहाँ से CFSE निकालोगे, निकल जाएगी CFSE, कितनी आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स में, माइनस का 8,000, ठीक है। अब इसको करने का एक आसान तरीका भी है, बट मैं उस तरीके को लेके ना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। जैसे एक तरीका है, जब आपके पास मेटल सेम हो, लिगेंड सेम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, तो डेलो डेल्टी निकालने का तो रिलेशन अब आपके पास है, डेलो 4/9 डेल्टी 4/9 डेलो से निकल जाएगा। लेकिन CFSE निकालने का भी एक तरीका है। क्या? अगर एक देखो 6 लिगेंड्स के आने की वजह से CFSE आ रही है 12,000, तो एक लिगेंड के आने की वजह से कितनी आएगी? 12,000/6, तो 4 की वजह से कितनी आएगी? 12,000/6 इंटू 4, 8,000 डायरेक्ट आंसर कर लेना, ठीक है। तो ये भी एक है टेक्निक, दिमाग में चल रही है मेरे, और मैंने कई सारे क्वेश्चंस किए ऐसे हुए हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ यार इस चीज़ के लिए, बिकॉज इम्पेरिकल रिलेशंस हैं, कभी कभी काम नहीं भी करते, बट आई थिंक कि वो सही है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये जो H2O6 है, पूरी 12,000 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर 6 के 6 लीगेंड्स के लिए। तो और क्योंकि यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो सिर्फ नंबर ऑफ लीगेंड्स है, तो तुम कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, चार्ज सेम है, मतलब एक तरीके से मेटल सेम है, लीगेंड की पावर सेम है, सिर्फ नंबर में डिफरेंस है, तो CFSE का इस तरह से खेल कर सकते हैं डायरेक्ट, तो भी आंसर 8,000 ही आएगा और बहुत छोटा मेथड पड़ेगा। विच आर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल नॉट बी अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल? कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, किसी भी कॉम्प्लेक्स जिसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, उसमें मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्टाहेड्रल जो होगा इज डिस्टॉर्टेड, वो डिस्टॉर्टेड होता है और मोर स्टेबल होता है। ये डिस्टॉर्शन स्टेबिलिटी के लिए होता है, याद रखना, अनस्टेबल नहीं होता सेल सिस्टम, ये डिस्टॉर्शन स्टेबिलिटी देता है। तो कौन सा होगा? कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, कॉन्फ़िगरेशन दैट गिव्स JTD, रट लो भाई, D1, D2, D4, D5 लो स्पिन, D6 हाई स्पिन, D7, D9, ये कॉन्फ़िगरेशन JTD देती है। अब देखो क्रोमियम यहाँ पर क्या है, क्रोमियम +3, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, ओवरऑल चार्ज ही मैग्नीज सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये एनायनिक है तो Fe+2, क्योंकि 6 साइनाइड, एक CN पे CN- होता है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा -6, उधर जाके +6 +6 -4 +2, ठीक है। और ये फिर से कोबाल्ट +2। अब ये देखो क्रोमियम +3 क्या, क्रोमियम होता है D5S1, एक्सेप्शनल D5S1, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या बनेगा? D5S1, उसकी जगह बनेगा D3 तो बनेगा D5S1, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक, हाँ ठीक है, D5, हाँ D3 बचेगा। Mn क्या होता है? D5S2, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन गए, D5 बचा। D5 वाटर है, वीक लिगेंड है, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या होगा? हाई स्पिन, हाई स्पिन ही तो होगा। और Fe+2 D6S2, तो ये D6 हो गया। कौन सा D6 होगा? ये लो स्पिन, क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा, तो लो स्पिन होगा, तो ये लो स्पिन आएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, स्पिन कम हो जाएगी, ठीक है। कोबाल्ट, ये कोबाल्ट +2 में वाटर वीक होता है, कोबाल्ट +3 में स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पर ये वीक ही रहेगा। तो ये कोबाल्ट क्या होता है? फीको, यानी कि D7S2, तो ये क्या है? D7 है। अब D7 तो देता ही है, चाहे स्ट्रॉन्ग, चाहे वीक हो या हाई स्पिन हो या लो स्पिन, D7 D9 तो देंगे ही देंगे, D4 D2 D1 भी देंगे ही देंगे, हाई लो से मतलब नहीं होता। तो देखो अब इसमें क्या होगा? विल नॉट बी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, इनमें से कौन नहीं होगा? जो JTD शो करेगा, जो JTD शो करेगा वो रेगुलर नहीं होगा। D3 देता है? नहीं देता। D5 हाई स्पिन देता है? नहीं देता। D6 लो स्पिन देता है? नहीं देता। कौन देता है? D7 देता है। तो D7 वाला इसका क्या होगा? नॉट, ये शो करेगा GTD, ये क्या करेगा? शो करेगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, शो JTD, ठीक है। चलो, a solution containing 4.2 ग्राम KOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, यानी कि टोटल वेट कितना है?
टोटल मास कितना है 4.2, तो लेट कर लो KOH का x ग्राम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेट कर लो बेटा, कितना हो जाएगा 4.2 माइनस एक्स, 4.2 माइनस एक्स ग्राम। इसको न्यूट्रलाइज कर लिया बाय एन एसिड इफ इट कंज्यूम्स 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। एसिड के इक्विवेलेंट्स कितने हैं बेटा 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है, यहाँ पे रूल क्या लगेगा, इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट्स तो यही बात हो गई ना कि बराबर रिएक्ट करते हैं। इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड